Hi everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. Now, today I am very elated because this is podcast number 2 today. Okay. And in this podcast, we are bringing a very special guest. First podcast was a kind of spiritual podcast close to my heart. It was meant to spiritually heal you all of you, because I know uh, many students gave prelims 2023 this year, and not everyone cleared this exam. We all needed some kind of spiritual boost to decide what to do, what's our next plan, what to do next now. Should we find a backup option, or we should go for plan B, or we should sit for this exam? With which attitude should we go forward, or should we go ahead? Because attitude is important. And in our first podcast, thankfully, Nikhil Bhaiya explained to us that service should be our attitude. If we are preparing for civil services, if we are preparing for any other exam, the only purpose should be service. And because of that purpose, distractions, they stay away from us. सिर्फ सर्विस के वजह से ये डिस्ट्रैक्शंस हमसे दूर रहती हैं. दैट इज अ फैक्ट. ये तो फैक्ट है, आप भी मानोगे, मैं भी मानती हूँ. Now, in this second podcast, I wanted someone who can not just mentally heal us, but also can academically guide us towards the preparation strategy. Because 90% students who have mailed me after the first podcast, they told me, "Ki ma'am, we want to sit for 2024. We want to make it our first and last successful attempt. But we need guidance for that. And we want someone who can guide us regarding syllabus, resources, and also what is the difference between backup plan and plan B." ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बाय द वे. तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है? तो someone who can guide us in this regard. And I am bringing, and I'm very elated when I introduce her to all of you. She has been a former educator at Unacademy, and also her notes have helped a lot of students. Some of them have actually cleared this exam. I'll be sharing a little clip with all of you in few minutes. Next few minutes I'll be sharing that clip with all of you. तो वो एक ऐसी एजुकेटर है जो सिर्फ एकेडमिकली इंक्लाइन नहीं है, बल्कि वो मेंटली स्पिरिचुअली भी लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है. शी वॉज वंस एन एस्पिरेंट herself, and how she has dealt with all the difficulties in her own personal life and journey, and yet she has a big cute smile on her face. But before I introduce her to all of you, there's a little clip that all of you should see. एक छोटी सी क्लिप है जो आप लोगों को देखनी ही चाहिए, so that you can understand who this personality is, हम किसकी बात कर रहे हैं, who is now going to be a guest on our podcast number 2. So I'm going to share with you a little clip. ठीक है, do tell me कि ये कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं. Do tell me. First of all, there is a very interesting thing regarding Unacademy. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, एक्चुअली मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुआ था तब, तो जब मेरे माइंड में ये था कि हाँ प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, तो घर पे थोड़ा ऐसा था कि मुझे अपने आप को कन्विंस करना था कि हाँ मैं इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ. ऐसा नहीं था कि बस मैं घर वालों ने बोला और मैं चला गया दिल्ली प्रिपरेशन करने. वहां जाने के बाद पता चला कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर यूपीएससी इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग फॉर अस. तो मैंने जैसे ज्योग्राफी लिया, मैंने सोचा कि पहले इसका कुछ पोर्शन कंप्लीट करते हैं बेसिक, और फिर देखते हैं कि उसका क्वेश्चन मैं यूपीएससी के पेपर में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स. तो मैंने अर्पिता प्रकाश मैम के जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो उन्होंने सिनॉप्सिस टाइप का वीडियोस बना रखा है, जैसे कि 2 hours 30 minutes का 6th क्लास की ज्योग्राफी है, 7th की. तो मैंने 6th to 10th की कंप्लीट की. उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो आई वाज एबल टू डू दैट. तो मुझे लगा कि काफी कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि यार ज्योग्राफी इतना सा पढ़ने से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. तो 11th 12th का मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि आई शुड गिव अ चांस टू यूपीएससी. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली आते हैं, और कोचिंग वाज नॉट नेसेसरी फॉर. तो आप लोग देख सकते हो कौन थे ये थे IAS प्रदीप सिंह. And he mentioned our favorite educator, Arpita Prakash ma'am. Arpita Prakash ma'am has been making notes from NCERTs and has been uploading them, not just as an educator, former educator on Unacademy, but also she runs her own YouTube channel. अपना खुद का YouTube channel with the name Arpita Prakash. She's running that channel with grace, and also वहां पर academically ही नहीं वो गाइड करती हैं,
She is not just guiding academically, she is also guiding students, many students, since so many years, mentally, emotionally. She is a support system for all her students. I have provided you with the link in the description box. Do check her channel, and do let me know कि आपको उनके चैनल से कुछ एक हफ्ते आप आराम से उनके चैनल में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो. वो सिलेबस रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, प्लस मेंटल हेल्थ रिलेटेड बातें करती हैं. और मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना कि हाउ हर चैनल हेल्प्ड यू, बिकॉज ऐसे काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेल करते हैं कि कैसे अर्पिता प्रकाश मैम ने उनको मेंटली स्टेबलाइज किया है. So now a warm welcome to Arpita Prakash ma'am. And now she's going to take over this podcast as usual with her charm and with her cute little smile. Hi Di, कैसे हो? Hello Arpita, I'm good. How are you? I am good. अब आप स्टूडेंट्स तो देख ही सकते हैं कि हमारा नेम बिल्कुल कॉमन है, तो हम नेम पार्टनर्स हैं, अर्पिता प्रकाश, अर्पिता शर्मा. तो अभी जैसे मैंने आपका एक बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दिया है सबको कि आप फॉर्मर एजुकेटर रह चुके हो एट अनअकैडमी. आप करंटली अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हो, जहां पर आप सिर्फ अकेडमिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बच्चों की हेल्प करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो. सो मैंने आपकी जर्नी में ना अभी तक सर्विस का एटीट्यूड देखा है अभी तक सो फार, एंड वही मैं बच्चों को दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करो, अगर आपको वाई पूछना है कि क्यों मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आंसर सबसे पहले होना चाहिए सर्विस. सर्विस देने के लिए, इवन सिविल सर्विसेज में भी सर्विसेज वर्ड आता है, और सिविल मतलब सिटीजन्स, सबकी, जन की सर्विस. तो हम उसी को भूल जाते हैं और फिर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बीच में डिस्ट्रैक्शन आने तो फिर परमानेंट ही है कि आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई दो राह नहीं है. तो दी, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप आ रहे हो यहाँ पर. एंड आप सबको मैं बता दूं कि मैं दी को बहुत टाइम से बोल रही थी कि आप मेरे चैनल पर आओ गाइड करने के लिए बच्चों को, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल चैलेंजेस शी वाज नॉट एबल टू. बट नाउ शी इज बैक विद ऑल ऑफ अस. एंड ओवर टू यू दी, आप अपने आप को थोड़ा सा अगर इंट्रोड्यूस कर दें बच्चों के लिए, देन वील स्टार्ट. Sure. Firstly, तो thank you so much for calling. And मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था because I am doing it for the first time for people. But हाँ, एक होता है कि जब आप, जैसे मैं जो अपने चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ, so it's very personal of a thing. मतलब मेरे अंदर जितनी चीजें हैं and what I feel, my experiences, others experiences which I have got, तो मैं वो share करती हूँ. But now that we are doing it as a podcast and you know like you are also having your own opinion, I am also having my own opinion, तो ये चीज जो हम कर रहे हैं I think it's very important and different. तो thank you so much for calling firstly. Secondly, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो as you have introduced, I have been the former educator at an academy, but of course I have been associated with the civil services for past many years, firstly as an aspirant and then as an educator. वो जर्नी भी काफी लंबी रही है एज एन एजुकेटर वाली भी. इट्स बीन लाइक आई थिंक 6+ years. तो ड्यूरिंग द जर्नी काफी ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ जो खुद एस्पिरेंट रह के फिर सिलेक्ट भी हो गए हैं. सो फ्रेंड कम ऑफिसर्स वाली चीजें हैं. तो फिर आप उनको बहुत अलग तरीके से एनालाइज करते हो एंड देन अपनी खुद की लर्निंग एक्सपीरियंसेस है. And not just exam, as you said, more about life. Like I have got that approach of moving more towards life, और फिर मुझे लगता है बाकी चीजें follow up में हो जाती हैं, be it this exam or let's say anything else in the life. तो एक वो छोटी सी अब कोशिश है कि मेरे पास जो भी experience है, understanding है, I just share it with the world because we have a limited life. That's what I understand. दो life इज बिग जैसा हम कहते हैं, बट वो बिग हम बनाते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें पता नहीं होता पहले से कि कितना टाइम है हमारे पास. तो जो है उसमें just trying to help people out with that. So that's all about me. That's so wonderful. दी, जो आपने बोला ना कि लाइफ छोटी लाइफ है बट हम उसको बड़ा बनाते हैं, तो दैट इज अमेजिंग बिकॉज ये पर्सपेक्टिव ना हर किसी के पास होता नहीं है, और अगर होता भी है ना तो हम भूल जाते हैं. मटीरियलिज्म, स्ट्रेस, पैसा कमाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, दिस एंड दैट, तो हम भूल ही जाते हैं. हमको पता ये होता है, बट आपने पॉइंट आउट किया तो अब मुझे मेरे पॉडकास्ट का कंटेंट नंबर 1 मिल गया कि इसी पर बात करनी है हमको. Sure, let's continue. बट दी, मैं स्टार्ट करूंगी बिकॉज स्टूडेंट्स राइट नाउ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. देयर आर बिगिनर्स. आई हैव दीज मेल्स, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ एसोसिएटेड थी काफी टाइम से. मुझे ना कभी कभी लगता है कि अरे बच्चे को इतना तो आना चाहिए. मैं भूल जाती हूँ कि कुछ नए बच्चे भी हैं जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज,
what about those who are giving this attempt for the first time? तो मैं syllabus related question नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि mindset क्या होना चाहिए शुरू करते टाइम. So my first question will be beginner's mindset. क्या होना चाहिए journey start करने से पहले? Okay. So I believe in this idea since, I think probably since childhood, जब मुझे इन चीजों की कोई समझ नहीं थी. Forget about exam, just normal, let's say school का exam, college का exam. समझ नहीं थी, बट कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर रहता था. और उसको एज अ कोट अगर मैं बोलूं तो वो मैंने अपनी ड्यूरिंग दी सीएससी जर्नी फॉलो करा, बहुत डिलीजेंटली फॉलो करा. एंड कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसने मुझे उस लाइन को कहते हैं ना, उस पे वो स्टैम्प लग गया कि ओके, this is proven, if you just go with this idea and attitude, you are good to go in anything that you do. So that idea is hoping for the best and being prepared for the worst. If I say about a beginner's mindset, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं हमारे पास सब कुछ होता है, that zeal, that enthusiasm, that sitting capacity, so much of optimism, and हम बहुत देर मेहनत करना चाहते हैं, हम we are ready to compromise, sacrifice everything. But see, the point is not how you are beginning, the point is how you are sustaining. ठीक है, शुरू करना बहुत आसान है, कहा जाता है well begin is half done, but in my opinion, क्योंकि ये छोटी जर्नी नहीं है, ठीक है, अगर हम मिनिमम भी बात करते हैं तो 1 year, let's say somebody cracks in the very first attempt, ठीक है, and just with 1 year your preparation, although ये practically बहुत कम लोगों के साथ होता है, but let's just assume, तो 1 साल तो इंसान प्रिपेयर करेगा और 1 साल एग्जाम प्रोसेस होगा, तो भी तो मिनिमम 2 years है ना. हाँ. ठीक है. एंड यू नेवर नो उस बीच में आपके साथ और क्या क्या चीजें होती रहेंगी. सो यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट, दैट यू विल डू योर बेस्ट right from day one. This should be clear, and this does not mean that you're doubting your capabilities. This does not mean that. क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि जब हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं उसका ये नहीं मतलब है कि हर दिन हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा नहीं होगा. नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग नेगेटिव. It's just about telling you from day one, and maybe just on day one and keeping it within you, that in case if it doesn't work out, because the data says that lakhs of aspirants भरते हैं, then आधे appear होते हैं, then filter होते हैं हर stages में, जो final number होता है वो 700 से 1000 के बीच में, depending on the year जो vacancy होती है. अब उसमें भी probably half or more than half of the people are somebody who has cleared the exam, जिसको रैंक प्रूव करना है. somebody who is already a veteran, जो 2-4 साल से पढ़ रहा है कर रहा है, उसको एक बेसिक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. डेटा ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल फिलोसफी, राइट. सो उतना तो कंसिडर करना पड़ेगा उस प्रैक्टिकल अप्रोच को. सो इट्स बेटर कि तुम प्रिपेयर रहो डे 1 से कि इन केस इफ दैट डज नॉट वर्क आउट, आई विल स्टिल बी what in best of my mental and emotional and physical health. I will not harm myself in any way, and I will not let others also make me feel inferior if in case it doesn't work out. But ये अपने आप को समझा लेने के बाद फिर अपना बेस्ट एफर्ट करना है एंड होप करना है. तो एंड अपार्ट फ्रॉम सी एवरी अदर क्वालिटी, लाइक यू हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड एवरीथिंग, वो सब तो चाहिए ही, डिसिप्लिन और वो सब तो माइंडसेट में चाहिए अपने आप को रिगरस बैठाने के लिए. But I think this one line, hoping for the best but be prepared for the worst, is something I would sum it up that. वंडरफुल. मतलब क्योंकि बच्चों को जब बिगनर्स माइंडसेट के हम जिस किसी से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हर कोई ये बोलता है अरे पैशनेट होना चाहिए, जील होना चाहिए. वो तो होता ही है, तभी हम इस जर्नी में आए हैं. इतना बड़ा रिस्क लिया है हमने कि हम आई हैव फ्रेंड्स जो मुझे देखते हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और वो मुझे बोलते हैं कि भाई मैं तो पॉलिटी की तरफ देखूं भी नहीं. उन्होंने खुद पढ़ा नहीं है, बट वो इतना डरते हैं यूपीएससी के नाम से कि मेरे से नहीं हो पाएगा. मैं पूछती भी हूँ अगर पढ़ के तो देखो, पता चलेगा कि हो भी पाएगा या नहीं. तो वो नाम से यूपीएससी से डर जाते हैं. तो इतना तो पता है जो बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है वो पैशनेट है, उसने रिस्क लिया है इतना बड़ा. बट ये जो आपने समझाया ना कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड जस्ट राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, ताकि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी में भी ना जाएं कि नहीं होएगा नहीं, और हम एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ इस तैयारी को करें. एक रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक रियलिस्टिक माइंडसेट. सो दैट्स वंडरफुल. दैट इज द होल आइडिया. मतलब सब लोग मुझे जैसे कहते थे जब मैं ये बातें शेयर करती थी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो तुम शुरू से ही अगर नेगेटिव सोच के बैठो
बट वो डिफरेंट होता है. मैंने हाँ. बोला आई एम नॉट थिंकिंग नेगेटिव, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ दैट इफ इट डजंट वर्क आउट इट डज हाँ. नॉट मीन इट्स नेगेटिव. हाँ. क्योंकि डेटा कह रहा है, अगेन डेटा हाँ. कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ. हाँ. तो आई विल, मेरे हाथ में क्या है, काम करना, हाँ. बेस्ट एफर्ट लेना, मेरे आई मीन किसी भी एस्पिरेंट के हाथ में, तो उतना कर लो. अब वो रिजल्ट फॉलो करता है या नहीं करता है वो जब आएगा तो देख लेंगे. बट इतना प्रिपेयर रखो कि यू विल नॉट ब्रेक टू एन एक्सटेंट कि इन केस दैट डजंट वर्क आउट देन व्हाट नेक्स्ट. वो जो व्हाट नेक्स्ट होता है ना, उसको डे 1 में ही अपने लिए क्लियर करके रख लो. So if you have this clarity, you will have a clear mindset throughout your journey. It takes 1 year, 2 year, or whatever number of years. So that's the whole idea, I would say. एंड ऑल्सो दी मैंने भगवत गीता में ना एक टर्म पढ़ा था, स्थित प्रज्ञा. तो उसका मतलब ये होता है, कृष्ण समझाते हैं कि चाहे खराब सिचुएशन हो चाहे अच्छी सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपको वेल बैलेंस्ड रहना है. दोनों ही सिचुएशन में ये नहीं कि बस हो गया तो बस कूद रहे हैं और ढोल नगारे बजा रहे हैं, और नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने वर्थ पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक एग्जाम ने तुम्हें डिटरमाइन कर दिया कि तुम इंटेलिजेंट हो या काबिल हो या नहीं. तो स्थित प्रज्ञा मुझे लगता है वो आपके इस कोट में काफी अच्छे से बैठता है. And this is also something I've learned from you right now. So I'll also keep this in mind for any other endeavor that I'll be taking up. And Yeah. also the moving ahead to my next question. अब जैसे हमने माइंडसेट तय कर लिया, ओके, फाइनली वी आर क्लियर कि हमको जो 1 साल 2 साल हम इस प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो इस नॉलेज से देना है कि ये जर्नी डिसाइड नहीं करेगी मैं कितनी केपेबल हूँ, और अगर अच्छा होता है बुरा होता है दोनों ही इट्स फॉर द गुड, मतलब मेरे अच्छे के लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, मैं कुछ तो सीख ही रहा हूँ इस जर्नी से. अब सेकंड स्टेप इज नाउ दे आर बिगिनर्स, और इवन इफ उनके सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने पहले के कुछ अटेम्प्ट्स में कुछ ना कुछ कमी रह ही गई होगी. सो द क्वेश्चन इज नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, सिलेबस, कौन सी रिसोर्स, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, ये डाउट्स बड़े आते हैं, तो इसमें आप कैसे गाइड करोगे? Okay, so if somebody is a beginner in the sense, okay, now I have recently made a video on this, and I have, I would say, described the beginner as somebody who has either not given any attempt, just starting with the preparation, or with 0 attempt, or with somebody who has given 1 attempt, but that was a non-serious one. बिकॉज इतने लाख कैंडिडेट्स होते हैं तो सब जरूरी नहीं है कि पहला अटेम्प्ट एक बेसिक प्रेपरेशन के साथ ही दें. बहुत लोगों को समझ नहीं होती है, मिस गाइडेंस होता है, बहुत लोग जस्ट टू चेक हाउ द पेपर, मतलब बहुत से रीजंस होते हैं, राइट. तो आई पर्सनली विथ माय ऑल मतलब अंडरस्टैंडिंग कैटेगराइज इट इनटू 2 एस्पेक्ट कि वो बिगनर्स मेरे लिए दोनों ही बिगनर्स. अच्छा. ऐसे लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आई वुड से कि ठीक है, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज भी ऑल नो कि हमको स्टार्ट में देखना है, बट होता क्या है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि उसको देखना कैसे है. देखना ये सबको पता होता है और सब बताते भी हैं. तो माई आई वुड सजेशन टू दोज काइंड ऑफ पीपल वुड बी, ठीक है, पहले तो सिलेबस को डिटेल देखो, बट जब आप सिलेबस देखना शुरू करते हो पहले तो ये पता होना चाहिए उसको देखना कहाँ से है. सिलेबस हर जगह अवेलेबल है, कोचिंग वेबसाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब हर जगह है, बट ट्राई एंड लुक फॉर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट पहले तो, ठीक है. तो वो सेम चीज ही बाहर भी मिलेगी, बट जब सेम ही चीज मिल रही हो तो ऑथेंटिक सोर्स से देख लो. ट्राई टू हैव इवन दैट 1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है. अब जब सिलेबस देखना शुरू करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है. फॉर इंस्टेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फर्स्ट, पैटर्न कैसे क्या है, मार्किंग टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, नंबर क्या होते हैं. Then you will within the scheme you will understand the whole pattern, the whole process, different stages and everything. Within different stages the bifurcations you will understand. For example, prelims में GS का कैसा लगभग कट ऑफ जा रहा है, CSAT क्वालिफाइंग होता है, ये सब बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए. स्टार्ट अभी छोटा लग रहा होगा सुनने में, बट इसी मिस गाइडेंस की वजह से कितने लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं. ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि लैंग्वेज पेपर मेंस में क्वालिफाइंग है. आपको समझ ही नहीं आता है दैट एसए को पेपर 1 बोलते हैं एंड जीएस जो होता है वो उसको पेपर 2 बोलते हैं. जब जीएस 1 पेपर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी इज पेपर 2. जो टर्मिनोलॉजी है, जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑप्शनल में अगर आपको लिखा होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 तो मे बी यू विल थिंक इट्स 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट इट्स 2 डिफरेंट पेपर्स ऑफ 1 सब्जेक्ट. What I'm telling is छोटी छोटी जो चीजें होती है ना उसको स्टडी करो. वो नोटिफिकेशन जो आता है उसके 4-8-10 जो भी पन्ने होंगे टोटल फॉर द सिलेबस, स्टडी देम, नॉट जस्ट रीड देम. सिलेबस की नहीं मतलब अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बढ़ गए. नो,
even if you'll not make sense in the beginning, which you will not if you are a beginner, but still do that. तो और फिर सिलेबस की डिटेल्स, तो ये तो हो गया सिलेबस पढ़ने का तरीका. देन यू अप्रोच द PYQs. तो अब क्या होगा, PYQs कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है. जो अटेम्प्ट दे चुके हो तो उनको भी बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, विच इज ओके. फर्स्टली तो ईगो नहीं लाना है बीच में, एक्सेप्ट कि इट्स ओके, आज नहीं आ रहा है बट हो सकता है जिस दिन देने जाओ उस दिन आ रहा हो ना सब कुछ, पेपर देने जाओ, तो यू हैव टू ट्रैवल दैट जर्नी पूरा वो. तो जब आप PYQs देख रहे हो तो आप लेट्स से 5 साल 10 साल जो भी उठाओगे, शुरू में तो चलो थोड़ा छोटे से शुरू करते हैं, तो लेट्स से प्रीवियस 5 years इफ यू स्टार्ट विथ, जस्ट टू गेट द करेंट आइडिया. अब जैसे अब 23 के बाद तो शायद 1 year ही बोलना चाहिए, बिकॉज देन प्रीवियस 5 year विल नॉट इवन वर्क हियर. So you do it differently for the prelim stage and the main stage, ठीक है. Just read the question, like let's say you're reading a novel, just to grasp it कि okay, vocab से थोड़ा सा खुद को familiar बना लो. That is it. अब ये दोनों चीज करने के बाद identify a list of sources, जो कि हर जगह अवेलेबल होती हैं. कॉमन बुक लिस्ट है, टॉपर्स के उसमें भी होती हैं. हमारे ऐसे लोग वीडियोस बनाते हैं, एजुकेटर्स जो होते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम. आई वुड अगेन रेकमेंड द बेसिक नीड नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है. वो चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चंस आए या ना आए, शुरू का थोड़ा वक्त कंसिडरिंग द टाइम यू हैव इन योर हैंड देना जरूर चाहिए. मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. So when I started my journey with Unacademy in 2017, so I was given the task of NCERT series, right? So the first video that was, what was told to me was to make on the geography NCERT from 6 to 12. अब मैंने वो जो क्लास 6 की NCERT की वीडियोस बनाई, एक तो खुद मुझे भी बहुत मतलब सुन के आज लगता है कि यार 6 के तो थे, हमने भी तो पढ़ा था, बट it is very different. You have to know every single detail which is given in that book. क्योंकि वो बुक में ज्यादा नहीं लिखा होता, वो एक एक लाइन होती है, आपको उसका बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए. इवन इफ इट्स क्लास 6 ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो वो थोड़ा मतलब हो जाता है. तो क्या होने लगा कि अब जब वो वीडियोस पब्लिक हुए, बिकॉज वो फ्री प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे, देन यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ उनके चैनल पे. नाउ स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्टेड कमेंटिंग. I was making for the UPSC aspirants, considering the age group of 21 to 32, एक ऑर्डर उसके लिए. तो बट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के, किसी के अंकल के, सब, एंड फेसबुक पे आ रहा है, मेरे को कोरा पे आ रहा है, इधर उधर आ रहा है, दैट यू नो आवर चाइल्ड आल्सो स्टडीइंग फ्रॉम योर वीडियो. अभी समर वेकेशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं. माय पॉइंट वाज कि अगर मैं एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब वो चीजें बच्चे को भी नहीं क्लियर है 6 वाले, और वो इतने बड़े जो 30 साल का या 28 साल का 25 साल का, उसको भी नहीं क्लियर है. तो बेसिक को नहीं अवॉइड करना है, क्वेश्चंस आए या ना आए. हाँ, टाइम आपको थोड़ा बांटना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि 10 महीने आप बेसिक में लगा दो. तो आई थिंक धीरे धीरे जब आप स्टेप लेते हैं, फिर आप एडवांस बुक की तरफ बढ़ेंगे. एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द बिगिनर्स टू बिगिन विद वुड बी कि आप एक रफ प्लान लेके चलो. वाली एक पूरा जितने भी महीने 10 11 12 लगा रहे हो, मंथली एंड वीकली एंड डेली, ठीक है, एक रफ. उस पे भी खैर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी थी, बट वो खुद मुझे नहीं लगता. अब इन्हीं सब चीजों में मेंटोरशिप के नाम पे मार्केट में बहुत पैसा लिया जा रहा है, जस्ट टू गिव यू अ टाइम टेबल. I mean, if you cannot do some basic thing by yourself, how you have that? और उस टाइम टेबल में accommodate any kind of uncertainty का भी space, जैसे एक दिन हफ्ते में छोड़ दिया या 2 दिन छोड़ दिया, ताकि बैकलॉग्स कवर हो जाए, रिविजन हो जाए. कुछ ऐसा हो रहा था जो जिसके वजह से नहीं कर पाए, तो उसको उसमें कर लिया, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड CSAT, उसको अब सीरियसली लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा. तो उसके एक एक टॉपिक को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना होगा previous questions से, and then you just identify the key topics पहले, then you move on to the other topics. उन topics को I think YouTube videos are a great source. ज्यादा फालतू पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत लोग अच्छे videos बनाए हैं. उन जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, ये बेसिक टॉपिक्स है जिसपे आते ही आते हैं. इस बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था काफी हेवी अमाउंट में, तो उसको आप देख लो थोड़ा थोड़ा उसकी बेसिक्स. और शुरू से यार 10-15 मिनट अगर डेली के देंगे, तो आई डोंट थिंक साल 1.5 साल बाद इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. आई थिंक एक सीक्वेंस में, अगर मैंने अभी उसी सीक्वेंस से बताने की कोशिश की है, इफ दैट वर्क्स, आई मीन मेरे हिसाब से तो मे बी इट कैन गो. अच्छा, किस सब्जेक्ट से शुरू करना है? इधर स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट विच यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे एंड कंटिन्यू हो. और यू स्टार्ट विद समथिंग विच यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट, ओके, ताकि उसको पहले निपटा के खत्म करो टाइम्स. मतलब आई फॉल इन द सेकंड कैटेगरी. जैसे मेरे को अगर कोई सब्जेक्ट टफ लगेगा तो आई वुड प्रेफर किया, क्योंकि ना क्या होता है,
अब इजी सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके दिमाग में वो टफ वाला घूमते रहेगा कि ये तो मेरे को आता नहीं, ये तो मेरे को आता नहीं है, तो ना फोकस इधर होगा ना उधर होगा। हाँ। उस केस में टफ वाले को पहले खत्म कर लो, और हम्म। या अगर इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, बैठने में मुश्किल आ रही है, देन स्टार्ट विद द इजी और द यू हैव द लाइकनेस फॉर कि आपको पसंद है, तो उसमें आई थिंक इजी हो जाता है। I think, and then identifying the optional and everything, of course, follows with the process. But I think for beginners, this is what I would advise. ओके, थैंक यू सो मच दी। तो बेसिकली अगर हम सम अप करें तो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस मैपिंग, दैट टू फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स, दैट इज यूपीएससी's वेबसाइट. सेकंड वन वुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जस्ट टू Separately for prelims हाँ and mains. हाँ. So just to understand what UPSC demands and just to adjust with the terminologies जो questions में use होती हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, ठीक है. सिलेबस में पढ़ के समझ नहीं आएगा क्या है गवर्नेंस जब तक आप GS2 नहीं देखते हो, क्वेश्चन पेपर नहीं उठा के देखते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इन गवर्नेंस दे आर आस्किंग. देन जैसे कि अब जैसे प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस हम साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, ओवरलैप करते हैं, और स्टार्टिंग मेन से ही करते हैं हम, क्योंकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है वो कवर ऑलरेडी हो ही जाता है, क्योंकि डिटेल में स्टडी करना शुरू करोगे तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा. फिर आपने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी मैप करना है. फिर आपने बताया कि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल, आजकल तो यूट्यूब पे भंडार पड़ा है, रिसोर्सेज मिल जाता है, बट बेसिक से जुड़े रहना है, विच इज एनसीईआरटीज, क्योंकि इवन स्कूल का स्टूडेंट इज फाइंडिंग इट टफ टू अंडरस्टैंड, एंड 30 ईयर तो फिर उसका तो गैप ही हो गया है पढ़ाई से इतने सालों का. तो दैट्स वंडरफुल, मतलब एक बूस्ट तो मिल ही गया कि स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है. Now, my third question is interconnected with the first and the second one, which is कि okay, we have the mindset. आपने बताया कि prepare मतलब अपना best दो, put in your best, but be prepared for the worst also. Second, you have told us कि start कहाँ से करना है, academically, syllabus वगैरह. Third is how to maintain that same passion जो beginning में था, जो same mindset आपने बताया था, उसको इस journey में कैसे maintain करें, how to not lose our focus, because होता ही है. सोशल मीडिया से डिटैचमेंट हर कोई नहीं रख पाता, बीच में आ ही जाते हैं. फॉरगेट अबाउट सोशल मीडिया, वी हैव आवर रिलेटिव्स, यू नो, हमारे पास सबके पास है कि दे कैन जस्ट एंटर आवर लाइफ, पता नहीं ऐसे एकदम घुस जाते हैं पॉपॉय की तरह, एंड देन दे कैन जस्ट दे ब्लास्ट अस विद ऑल दीज अननेसेसरी फियर एंड एक्सपेक्टेशंस, और फिर भाग भी जाते हैं, एंड देन रिजल्ट के टाइम पर आएंगे. इन दिस तो याद आती है कि ओके रिलेशन है, हाँ रिजल्ट के टाइम. हाँ एग्जैक्टली. तो फिर हम हाउ टू नॉट लूज आवर फोकस, ये मुझे पूछना है आपसे. चलो, तो अगर इस पे बात करें तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा फॉर एनीबडी हु इज बिगिनिंग, इनफैक्ट फॉर एनीबडी हु हैज बीन इनटू दिस फॉर सेवरल इयर्स, उनके लिए भी हो जाता है, क्योंकि अगेन मैंने एक्चुअली अब यूपीएससी की स्टेज हर क्वेश्चन को या हर एस्पेक्ट को एकदम ना लाइफ से रिलेट करने लग गई हूँ, एंड आई थिंक वो बहुत आसान हो जाता है even to answer the questions and also to have things in your mind. I mean, not just answer to somebody else but to yourself also. जैसे कि क्या मतलब है, आपको अगर ये पता है कि आपका एंड गोल क्या है, अगर यूपीएससी निकालना आपका एंड गोल है, then reflect, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो. यूपीएससी निकालना एंड गोल नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली, ठीक है, वो एक मीन्स है. ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक बहुत कम बिगनर्स को होती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी. आई रियलाइज्ड इट, आई डोंट नो व्हेन, बट बहुत लंबे टाइम के बाद, ठीक है. और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फिलोसफी पढ़ रहे हो या एथिक्स पढ़ ही रहे हो, ठीक है, जब पढ़ोगे तो सीख ही जाओगे, बट ईदर वे दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. आपको पता होना चाहिए आपको अल्टीमेटली क्या करना है, क्योंकि दैट ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अगेन बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट. जब आप शुरू कर रहे हो तो आप इफ इट वर्कआउट तो आपको पता ही है, सिलेक्शन हो जाएगा, एकेडमी जाओगे, ट्रेनिंग करोगे, ऑफिसर ट्रेनी बनोगे और सर्विस में आ जाओगे. तो ये तो पता है ना, मतलब दिस इज प्रेडिक्टेबल. जो नहीं पता है वो ये कि अगर नहीं होगा तो क्या. तो अगर आपको ये पता है कि ये मेरे लिए सिर्फ एक मीन्स है और मेरा अल्टीमेट एम जैसे कुछ और है, जो भी जिसके अलग रीजन से लोग इस सर्विस में आते हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, बट आपके जो भी रीजंस हैं, ठीक है, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए इसलिए आ रहे हो, एक अपना रुतबा और पावर जो भी है, ऑल्दो अगेन दोज आर द वेरी रॉन्ग रीजंस, बट ठीक है, अब चलो जो भी है, तो आप वो किसी और फील्ड में भी ढूंढ सकते हो इफ इट डजंट वर्क आउट, है ना. बट अगर आपको सोशल सर्विस भी करना है तो वो भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हो. मतलब आपके जो भी रीजंस हैं, तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द गोल, एंड गोल. पहले तो ये हमेशा याद रखो, एवरी टाइम यू हैव लेट्स से द डिस्ट्रैक्शन और द सेल्फ डाउट, यू विल हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए यहाँ
बहुत लकी होते हैं कुछ लोग, दे आर फॉर्चुनेट इनफ दैट दे हैव समबडी टू कीप देम रिमाइंडिंग, बट एक बार को हम मान ले कि नहीं है हमारे पास कोई, नहीं है हमारे पास पीयर ग्रुप, लेट्स से नहीं है सपोर्टिंग फैमिली, चलो इमीडिएट फैमिली तो फिर भी सपोर्ट कर देती है, रिलेटिव्स को तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ, I do not count them in this journey at all. मतलब again there are very few people, very few people जिनके relatives इतने supportive हैं, जो कि उनको पुश करेंगे, या अब जैसे हमने अनु कुमारी मैम का एग्जांपल देखा होगा, उनकी जर्नी हैज बीन अबाउट हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स, मासी के घर रह के पढ़ रही हैं, मामा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रेडी हैं, नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट टू हैव दैट, राइट? तो अब नहीं है तो हम रोएंगे थोड़े ना कि नहीं है, मतलब यू जस्ट हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, इफ इट इज अ प्रॉब्लम लेट अस फाइंड अ सोल्यूशन। आप हो ना खुद के लिए, फॉरगेट अबाउट एनीबडी एल्स, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छा है ले लो, नहीं मिल रहा है तो रो मत, बी फॉर योर सेल्फ, अवेलेबल फॉर योर सेल्फ एवरी सिंगल टाइम, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि हाउ डू वी गेट बैक टू, लाइक इफ यू लूज ट्रैक और विच इज समहाउ बाउंड टू हैपन, एक तो ऑलवेज रिमेम्बरिंग व्हाई यू स्टार्टेड, विच एवरीबडी सेज आल्सो, उसको हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना है, बट क्लियर रखना है, वो बहुत आसान होता है, मेरे को तो सिविल सर्विस करना था, मेरा बचपन का सपना था, या मेरे पेरेंट्स चाहते थे, या बगल वाले ने कर लिया, या फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, बट उसको क्लियर नहीं पता होता है। So it's like, imagine on day one that you are appearing for the interview, the personality test stage, और आपसे पूछा जाएगा most probably why do you want to get selected or become IAS or whatever। उस आंसर को अपने लिए डे वन से फिगर आउट करके रखो, और उसको रखो सामने, अगर लिखने की जरूरत पड़ती है तो लिख के रखो, नहीं तो दिमाग, अगर सी इफ इट्स वेरी फर्म विद इन यू तो शायद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो ऑटोमेटिकली रहेगा। तो एवरी टाइम यू आर फॉलिंग और लूजिंग ट्रैक, और बाहर के ऐसे लोग आपको आके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको, आपको खैर उनको आंसर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी आई वुड से इनडिफरेंट टुवर्ड्स देम, नॉट अच्छा नॉट बुरा, जस्ट इनडिफरेंट, जब तक एग्जाम के प्रोसेस में हो, बाद में रिश्तेदारी तो निप जाएगी, दोस्ती भी निप जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम। तो उस पूरे पीरियड में आपको वो डिसिप्लिन अप्रोच बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, क्योंकि if you are not able to have those officer like qualities during your preparation, it becomes very difficult to get them after your selection, क्योंकि ये gradual process होता है, ये academy नहीं सिखा सकती है, मतलब ये कोई नहीं सिखा सकता है, ठीक है? तो कुछ basic qualities तो हम over a period of time develop कर ही सकते हैं ना, like hard work का हो गया, consistency का होगा, perseverance का हो गया, discipline का हो गया, focus का हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको practically भी चाहिए बाद में, तो व्हाई नॉट डेवलप इट ड्यूरिंग द प्रोसेस। खुद को ऑफिसर फील करने में क्या मुश्किल है, मतलब पैसे तो लग नहीं रहे हैं, लोड भी नहीं आ रहा है, उल्टा अच्छा फील होता है। तो इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, इफ यू इमेजिन दैट, यू नो, जस्ट इमेजिन दैट ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट यू आर इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स, जस्ट इमेजिन योर finding your name in the list, just imagine that you're selected, you're getting the training, and then you are actually serving on the ground, you have n number of people in front of you looking at you with that hope कि ये मेरे लिए कुछ करेगा या करेगी। I think these are good enough reasons to push you, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन अपने हाथ में होता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसके लिए, जैसे मैं थोड़ी शायद गलत इंसान हो जाऊंगी इस बारे में बोलने के लिए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी डिटैच्ड फ्रॉम फोन एंड डिजिटल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, नॉट ड्यूरिंग एग्जाम बट प्रायर टू दी preparation process also. I am not a digital, you know, I would say, कैसे बोलूं, मतलब I am not very much attached to it. I know how to keep a distance, and keeping a distance from social media does not mean you're not a social person, ठीक है? बहुत अच्छी चीजें होती हैं। Secondly, it does not mean you're depressed, हाँ, ठीक है? मेरे लिए being away from social media at times is a healing process, and फिर वो मेरा अपना है, बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, I understand, but then you will have to figure out ways to like, you know, use it either optimally or not use it at all if that is way too distracting. But I think बाकी चीजें आप relative से indifferent हो जाओ, सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखो जब तक नहीं निकलता है, और हमेशा ये याद रखो कि अगर निकल जाएगा तो सोच लो लाइफ क्या होगी पर्सनली भी, एंड आप एक्चुअली क्या क्या कर पाओगे, like the vast scope that this paper has. I'm sorry, I think I'm talking a lot on but I have a lot to share, yeah, so yeah, I think this can help maybe. That was really beautiful, क्योंकि आपने ना थर्ड लर्निंग मुझे आज दी कि remember the means to achieve to your ends, and UPSC is one of those means. और ये बात मैं repeatedly स्टूडेंट्स को बताती हूँ चैनल पर, टेलीग्राम के थ्रू, कि
इसको ना इतना ज्यादा भारी बनाकर नहीं रखना है सर के ऊपर कि बस एंड गोल यही हो गया. दिस इज नॉट द एंड गोल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई पर्सनली लव आयरन मैन. मतलब मुझे एवेंजर्स में ना वो इतना पसंद है बंदा. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से उसने ना, उसको पता था क्रिएटिंग दिस सूट, ये आयरन मैन का सूट बनाना, दिस इज नॉट द एंड गोल. एंड गोल वाज टू सेव द प्लैनेट. दैट वाज जस्ट द मीन्स. वो जरिया था. अगर वो नहीं होता तो वो कैसे पैसों को कैसे यूज करता प्लैनेट को बचाने के लिए. उसने पैसे का सही इस्तेमाल किया, वो सूट बनाकर उसके थ्रू लोगों को बचाया उसने. एंड दिस शुड बी द एटीट्यूड, नॉट जस्ट इन यूपीएससी, एनीवेयर दैट यू गो. जहां पर भी जा रहे हो, जिस फील्ड में भी, इवन इफ यू आर अ टीचर, इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, डॉक्टर के फील्ड में तो होता ही है, even if you are a chartered accountant or company secretary, remember this is just a means. Maybe आप कमा रहे हो अच्छा, वो मीन्स है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सको, अच्छी वैल्यूज दे सको, प्लस उसी पैसे के साथ आप सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सको. देयर आर पीपल जो जिनके पास ये घर, पंखा, कूलर, एसी नहीं है. सो द पॉइंट इज, ये याद रखना जरूरी है जर्नी में कि ये मीन्स है. ऐसे कई सारे मीन्स होते हैं टू अचीव योर एंड पर्पस. नाउ द एंड पर्पस क्या है वो आपको डिसाइड करना है. एंड अगर वो सेल्फिश है, हाँ, इट कैन बी एनीथिंग, बट अगर वो सेल्फिश है पर्पस, तो फिर वो लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी आपके किसी भी एंडेवर में, है ना. वो तो सिलेक्शन के बाद भी नहीं रहेगा मुझे लगता हाँ, है. देन हाँ. पीपल विल स्टार्ट फीलिंग वेरी डिससैटिस्फाइड, क्योंकि वो जो सोच के घुसे थे वो होगा नहीं, अगर अगर नहीं होता है तो. देन आई थिंक, या आई मीन, यस, आई एग्री कंप्लीटली. एग्जैक्टली. मतलब ओ गॉड, सोल लर्निंग. बहुत डीप हो गया है. टूवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन इंटरकनेक्टेड हो गया कि ओके, दिस यूपीएससी एग्जाम इज वन ऑफ दोज मीन्स. अब प्रीलिम्स 2023 का तो आपको पता ही है कैसा पेपर आया था. So the point is, market में, not just in market, YouTube पे, हर जगह I can see कि people are saying please prepare your backup plan. Backup plan रखो, and that उसमें कुछ गलत पाप नहीं है. ठीक है. That is nothing that you should be ashamed of. ठीक है. That keeping a backup plan does not mean कि you are bad at something. It's just एक safe side होना चाहिए ना सब कुछ भी. और डोंट पुट योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट. इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सब यही बोलते हैं कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर मनी, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, आरडीज. तो बैकअप प्लान, और देन सम पीपल से प्लान बी. कुछ लोग बोलते हैं प्लान ए और प्लान बी यूपीएससी रखना है, प्लान बी नहीं रखना हमको क्योंकि फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे. प्लान बी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी के साथ स्टेट बेस्ड एग्जाम्स भी. ओके, ऑडियो इज, अभी ऑडियो क्लियर है? हाँ, ओके. तो थोड़ी सी प्लान, आवाज. ओके, तो प्लान बी बेसिकली मुझे लगता है कि आप स्टेट बेस्ड सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हो. दैट इज प्लान बी, कि यूपीएससी के साथ आप और एग्जाम्स भी दे रहे हो, बट प्लान बी में भी ना अनसर्टेनिटी आती है ना. बैकअप प्लान मुझे लगता है वो होता है कि आप साइड में कोई स्किल डेवलप कर रहे हो जिसको मोनेटाइज कर सकते हो आप आगे जाकर, जैसे कि हम लोग एस्पिरेंट्स रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली हमारी जो टीचिंग स्किल्स थी हम उसको डेवलप कर रहे थे, और फाइनली उस पर हमने मोनेटाइज भी किया, हम सस्टेन कर पा रहे हैं, है ना. बैकअप प्लान हो सकता है कि आप यूपीएससी के साथ साथ मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, रिसर्च की लाइन में जा सकते हो. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकअप प्लान, प्लान बी, एंड क्या रखना हमारे लिए सही होता है, ये आप स्टूडेंट्स को अगर क्लैरिफाई कर सको. So talking about the difference between these, then I think you have already like beautifully summed it up. That backup would be something that you already have in hand, that you can fall back upon if हाँ. it doesn't work out. ठीक है. Plan B would be simultaneously doing other हाँ. things, which is again as riskier as this is. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, but ठीक है, uncertainty तो है. तो I think difference तो आपने खुद बहुत अच्छे से बता दिया. But talking about each of them individually, if I say so, जैसे एक छोटा सा example अगर मैं अपना दूं, तो when I started this journey of coaching and everything and then understanding, अब उस टाइम पे इतना social media पे चीजें available नहीं थी, YouTube पे इतने guidance available नहीं थे. तो उसके पहले मैंने after my graduation and before my coaching, what I did was to do my B.Ed, ठीक है, Bachelor's of Education. अच्छा, उस ईयर क्या हुआ था, आफ्टर माई ग्रेजुएशन, सो आई अपीयर्ड फॉर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जिसमें बीएड के थे एंड मास्टर्स के थे. ठीक है. हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड था, तो 5 मैंने दिए थे, 3 मेरे निकल गए थे, 2 नहीं निकले थे. ठीक है. अब ऐसा हुआ कि मैं पहले मेरा एडमिशन, पहले जो रिजल्ट आया दैट वाज मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी.
So अच्छा, sorry, masters in history from Jamia. ओके, तो आई अटेंडेड द क्लास फॉर अराउंड 2 weeks, ठीक है। फिर उसी बीच में रिजल्ट आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर्स का, वहां भी मेरा नाम आ गया। अब मेरे घर से जामिया उस टाइम जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते थे, मेट्रो भी उतनी दूर तक नहीं डेवलप हुई थी जितनी अब हो गई है। दिस इज वे बैक इन 2013 आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, आज से 10 साल पहले। I graduated in 2013। तो क्या हुआ कि डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए, एंड सी बोथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी हैं। तो मुझे लगा कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं डिग्री कहाँ से ले रही हूँ, एंड रेगुलर क्लासेस थे दोनों, तो मैंने वहां से एडमिशन हटा के, बिकॉज ऑफ दी ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां भी मैंने 2 हफ्ते क्लास करी मास्टर्स की, कि बीएड का रिजल्ट आ गया जामिया से, दैट आई गॉट सिलेक्टेड अगेन वहां पर। अब मेरे मन में डिलेमा था, बट देन सारे घर में सबसे बात करके और फिर खुद भी थोड़ा सोच समझ के मुझे ये लगा कि मास्टर्स ना मैं अगले साल या बाद में कभी भी लाइफ में दोबारा अपेयर कर सकती हूँ। इट्स थोड़ा सा इजियर टू क्लियर मास्टर्स, और वो कहीं से भी किया जा सकता है, इनफैक्ट डिस्टेंस से भी किया जा सकता है। बट बीएड एक अच्छे जगह से करना, फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन इंडिया, एंड वी हैड जस्ट 12 सीट्स इन द सब्जेक्ट, जिसमें क्योंकि वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो हाफ सीट वॉज रिजर्व, 6 seats were reserved for the community and 6 was open for everybody. So I got selected in one of those 6 seats. अब उस 6 सीट को छोड़ना, वो नेशनल लेवल पे compete करके, वो बेवकूफी होती। मास्टर बाद में हो सकता था, तो आई अगेन मतलब वहां से मैंने एडमिशन वो विड्रॉ करा और फिर यहाँ मैं गई। ये सब बताने का रीजन सिर्फ ये है कि मेरे दिमाग में ये था कि बिफोर आई स्टार्ट, यूपीएससी था दिमाग में, बट आई वाज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, कि मैं एक चीज तो सिक्योर कर लूं, इफ नेवर इट विल वर्क आउट तो भी मैं बीएड के थ्रू स्कूल टीचिंग में जा सकती हूँ। और मैंने साथ में सीटेट का एग्जाम दे दिया, क्योंकि उस समय मास्टर्स मेरा नहीं हुआ था। तो बैचलर के लिए, फिर टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो यू नीड टू हैव दी सीटेट क्लियर्ड। वो भी मैंने साथ में कर लिया अपना, ठीक है। ताकि अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सीटेट की डिग्री है, मतलब सर्टिफिकेट है, एंड मेरे पास बीएड तैयार है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं कूद सकती हूँ किसी नई चीज में, कुछ नहीं भी होगा तो ये तो है ना। तो ये पूरा बताने का रीजन था, बैकअप वाली जो चीज होती है। नाउ दिस कैन बी लॉ फॉर एनीबडी, दिस कैन बी एमबीए फॉर एनीबडी, दिस कैन बी मास्टर्स नेट फॉर एनीबडी, अगर शुरू में ही करते रहो तो, मतलब फॉर यू और साइमल्टेनियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जर्नी खुद इतनी ओवरवेलमिंग है, इसमें बहुत कुछ है, तो फिर आप ना इधर के रह जाते हो ना उधर के। तो आई वुड से कि अगर एकदम वैसा फिक्स्ड वो नहीं है ना, कि 21 के ही उम्र में निकालना है और 22 में ही, मतलब मेरे पास तो नहीं थी वो क्लैरिटी, मैंने शुरू ही काफी लेट करा था। बट अगर किसी का क्लियर है बहुत, तब तो ठीक है, कॉलेज के टाइम पढ़ के फिर पहले अपियर कर लो, फिर तो 1-2 अटेम्प्ट के रिस्क ले सकते हैं। बट अगर थोड़ा लेट ही आप शुरू करो, तो हैव समथिंग इन योर हैंड टू फॉल बैक अपॉन, आई वुड रेकमेंड इट। और अब तो मेरे को लगता है 2023 का पेपर देखने के बाद, इन केस इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज फॉर लेट्स से फ्यू इयर्स, तो यूपीएससी समहाउ थोड़ा उसको बैक सीट ले लेना चाहिए आपके लाइफ में। पहले कुछ एक बहुत अच्छा अपना सिक्योर करो, जिससे जीवन चला सको प्रैक्टिकली, ठीक है, फिर वो देते रहना। क्योंकि अगर आप 21-22 तक में नहीं सिलेक्ट हो रहे हो, तो कैबिनेट सेक्रेटरी आप वैसे भी नहीं बन रहे हो। मुझे उस टाइम पता भी नहीं था शुरू में, जब मैंने स्टार्ट किया था, कि ऐसा भी कुछ होता है, दैट द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर योर करियर लेटर। बट ठीक है, अब सीखते सीखते समझ आ गया। तो तब तो वैसे भी नहीं बन रहे हो ना, तो फिर 1-2 साल लगा के कुछ रख लो अपने पास, ताकि कितना भी इमोशनली और अटैच टू दिस एग्जामिनेशन एंड इट इज योर लाइफ सोल वट एवर, बट जीने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए अच्छा काम करना पड़ता है। मतलब मैं अगर अच्छा काम इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज द पैसा हैज टू कम फ्रॉम अ डिसेंट सोर्स। तो उसके लिए अपनी चीजें सिक्योर कर लेना इज वेरी मतलब प्रैक्टिकल एडवाइस आई वुड से, नॉट इमोशनल एट ऑल। फिर आप साइमल्टेनियसली जितने अटेम्प्ट्स हैं देते रहो। सो एंड प्लान बी वुड बी लाइक कि वो तो आपके हाथ में ही है ना, मतलब आप जब चाहो तो कोई एग्जाम से थोड़ा ब्रेक लेके दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया, फिर दे दिया, तो उसके लिए मतलब एज इन दैट इज समथिंग, उसके लिए अलग से ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई डिग्री ले रहे हो या कुछ भी मतलब बैकअप ले रहे हो, तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा, उस डिग्री को भी एक, उसमें भी एक अच्छा अपना बेस बनाना पड़ेगा, ताकि कल को अगर वापस उस पे जाते हो, तो वो भी सिर्फ ऐसा वैसा ही नहीं हो कि बस नाम के लिए कर लिया। इट शुड हैव सम आई वुड से ऑथेंटिसिटी एंड सब्सटैंशियल होना चाहिए। मेरे को लगता है कि उसको कर लेना चाहिए। और प्लान भी तो आप साथ में अपने हिसाब से एट एनी एज, इफ योर एज अलाउज फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स अटेम्प्ट, देन यू कैन डू दिस एट एनी एज। उसके लिए तो ज्यादा सोचना नहीं होता है, क्योंकि प्लान बी और मेरे को लगता है यूपीएससी उसको बहुत ही पैरेलल लेवल पे रखना चाहिए, और वो एक ही हो गया।
हाँ एग्जैक्टली। उसका कुछ पता नहीं है, बट जो चीज का पता है उसको पहले करके सिक्योर कर लो, उसको समझदारी कहते हैं, उसको डाउटिंग या अंडर कॉन्फिडेंट होना नहीं कहते हैं, उसको समझदारी। हाँ ठीक है, कल को रोना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब इट्स अगेन लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। मुझे पता है हाँ। अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास ये है ना, फिर हम्म। भटकना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो इट्स लाइक कि बस अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, मतलब ठीक है, इट्स ईदर वे इट्स गुड। दैट इज माय आइडिया अबाउट दीस टॉपिक्स। ये पॉइंट आपका सही है, क्योंकि ना मैंने भी, बिकॉज आई वाज आल्सो नाइव इनिशियली, तो मैंने मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली का टॉप 10 कॉलेज में आता है। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी मास्टर्स करने का, क्लियर्ड इट द एंट्रेंस जो होता है, एंड लेफ्ट इट फॉर दिस प्रिपरेशन। तो मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि तब कर लिया होता मैंने, एंड मतलब काफी कुछ नए पाथवेज खुल जाते। नाउ अगेन मैं एज को साइड में रखते हुए, आई एम डूइंग माई मास्टर्स, 1 साल तो हो ही गया है, सेकेंड ईयर भी बचता है, तो मतलब बैक टू स्टडी। बट हाँ, टीचिंग वाज समथिंग जो मैंने स्टार्ट किया था साइमल्टेनियसली, बिकॉज उस वक्त आपको भी पता है मेरी जर्नी फाइनेंशियली इतना नहीं था। तो आई हैड स्टार्टेड माई जर्नी वे बैक इन 2016 टीचिंग का, जस्ट व्हेन आई ग्रेजुएटेड 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मैंने साइमल्टेनियसली पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑफलाइन पढ़ाती थी पहले, फिर ऑनलाइन का कल्चर, वो जियो का कल्चर आ गया एकदम, तो ऑनलाइन शुरू हो गया। तो जियो जिंदाबाद। बहुत काफी हेल्प हुई है उससे भी, पढ़ाई में भी और ऑनलाइन टीचिंग में भी। तो वहां से काफी एवेन्यूज। अब नाउ होता ये है कि बच्चों को लगता है कि देखो मेरे पास ऐसे कोई डिग्री नहीं है प्रोफेशनल एज बैकअप प्लान, ये तो बहुत क्लियर है, सबको पता है। बट हाँ इतना है कि मैंने स्किल सेट तैयार किया है, एंड दैट इज नॉट जस्ट एज एन एजुकेटर, मार्केटिंग में भी, कम्युनिकेशन में भी, मतलब दीज आर न्यू थिंग्स दैट आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू। चाहे मुझे डर लगता है, जैसे पॉडकास्ट वाज समथिंग आई वाज स्केयर्ड ऑफ डूइंग इट, पता नहीं कैसे बोलूंगी, कैसे स्ट्रक्चर करूंगी कॉन्वर्जेशन को, मुझे नहीं पता था। एंड नाउ मैंने 1.5 साल से प्लान किया हुआ था पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, 1.5 साल बाद जाकर मैंने अपने डर को साइड रखा, एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि आगे जाकर कैसे क्या बोलना है खुद को, कि डर गए थे इसलिए नहीं स्टार्ट किया। एंड नाउ 20 year olds are doing podcast, एंड मैं यहाँ पर डर रही हूँ at 27। सो आई थॉट कि नहीं, शुरू करते हैं, स्किल सेट बनाते हैं, स्किल्स के लिए शुरू करते हैं। एंड आई मतलब मुझे तो नहीं पता मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ, बट मुझे इतना पता है कि डर हट गया। थैंक यू। तो मुझे ये लगता है कि डर हट गया। नाउ सेम थिंग आई वुड रिकमेंड, लाइक अर्पिता प्रकाश मैम ऑल्सो सेड, कि साइड में एक टू फॉल बैक ऑन टू, एक साइड में क्वेश्चन रखकर चलो, क्या उसमें कुछ खराबी नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग कि आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो, बल्कि आप अपने आप अपनी कैपेबिलिटीज को और बढ़ा रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। बैकअप प्लान, दैट वाज वंडरफुल। And also the just sorry to interrupt, but हाँ also the learning that you will have during your जो भी आप बैकअप रखोगे, वो तो वैसे भी अगर get selected वो वैसे भी आपको काम आएगी। नहीं सिलेक्ट हुए तो करियर ऑप्शन की तरह काम आएगी, सिलेक्ट हुए तो एप्लीकेशन की तरह काम आएगी। जो थियोरेटिकल आपने सीखा वो आपको प्रैक्टिकल। अब जैसे मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आई तो मेरा तो बस ऐसे ही रैंडम था, नो प्लान्स। मैंने भी मास्टर्स ना, फिर जैसे बीएड खत्म होने के बाद मैंने डिस्टेंस से वो भी करना, मैंने डबल मास्टर्स कर लिया डिस्टेंस से, ताकि एकेडमिकली मेरा वो गैप भी ना रहे। रेगुलर में भी जा सकती थी बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा होता चला गया, बट इट वाज नॉट प्लान्ड दैट वे। तो एट टाइम्स आपके लाइफ में ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जब आप करते जाते हो, आपको शुरू में नहीं पता होता है, मतलब start doing it and you just do it and it happens, like you said about the podcast and everything, you are doing it beautifully। कोई नहीं बोलेगा कि you have just started it, I mean मतलब ऐसे beginner type you are doing it, कुछ नहीं पता लगता। So firstly congratulations for starting it, because again I mean back to the previous point, life इतनी है उसमें कर लो सब जितना मतलब कर सकते हैं, फिर हो ही जाता है। मतलब अगर नहीं भी होता तो कुछ खास ऐसा नहीं होता जीवन में, मतलब कुछ बहुत टूटता फूटता नहीं है। इट्स भी हमें लगता है, मुझे भी लगता था, मुझे तो लगता था कि मैं आई डोंट नो व्हाट आई विल डू आफ्टर दिस इन केस दैट डजंट वर्क, मैं तो बिल्कुल ही शैटर्ड एंड पता नहीं क्या हो जाऊंगी। बट ऑनेस्टली आई फील लाइक अ फ्री बर्ड, मतलब मेरे को लग रहा है अरे इतने सारे और स्किल्स भी तो थे अंदर में, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है। सो आई थिंक दैट वर्क्स वेल ऑनेस्टली। या दैट्स समथिंग। That's beautiful, Dee. Which leads me to my next question. कि अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, बैकअप प्लान हमने तैयार कर लिया, रिसोर्सेज पता चल गए, माइंडसेट समझ आ गया, बहुत चीजें सॉल्व हो गई हैं ऑलरेडी, मन थोड़ा शांत मेरा भी फील कर रहा है, एंड आई होप लिसनर्स का भी थोड़ा सा शांति मिल रही होगी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस जर्नी में ना एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं, हमारी तो होती हैं बट हमारी बहुत छोटी होती हैं, जितनी होती है वो पेरेंट्स की और सोसाइटी की होती है। चलो सोसाइटी को ना भी बताओ, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आई वेंट टू फ्रेंड्स प्लेस, वहां पर मेरे कुछ फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके पेरेंट्स भी आए थे, एक छोटी सी गैदरिंग थी। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, शी डिडंट कम बिकॉज शी कुड नॉट क्वालिफाई दिस ईयर, तो उसका आने का मन नहीं था। And her mom, she came up to me, she knew कि I was teaching UPSC category में, I was educating people, तो she comes up to me and she tells me कि बेटा उसका तो हुआ नहीं, बड़ा टफ हुआ था पेपर, और हम बड़ा चाह रहे थे कि क्लियर हो जाता, पढ़ती रहती है, सोशल लाइफ कट कर दी है, मास्टर्स का एंट्रेंस क्लियर कर लिया, नहीं गई, एंड हमारा बहुत मन है कि उसका हो जाए, हम तो उसको बोलते हैं कि वी लुक अप टू यू एज एन आईएएस ऑफिसर। तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि उस बच्ची से ज्यादा तो उसकी मम्मी की उम्मीदें हैं, है ना। मतलब शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मच एफर्ट्स उनकी बेटी ने डाले होंगे इस प्रेपरेशन में, शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ उसका, कि वो गैदरिंग में भी नहीं आई जस्ट बिकॉज उसका प्री क्लियर नहीं हुआ। एंड उनका बस फोकस बार बार वो ये रिपीट कर रही थी, मैं तो उसको एज आईएएस ऑफिसर देखती हूँ और उसको बोलती भी हूँ कि तेरा तो निकलना चाहिए, तेरा क्यों नहीं निकल रहा। तो दिस वाज द काइंड ऑफ वर्ड्स उसकी मम्मी जो यूज कर रही थी, तो आई न्यू इंस्टेंटली कि बच्ची से ज्यादा मम्मी की एक्सपेक्टेशंस है, और उसमें कुछ खराबी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ ये गलत है, बट एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस जर्नी में आप भी रही हूँ, मैं भी रही हूँ, हमें पता है स्टार्टिंग में हमारा जो मोटिवेशन होता है वो ओवरबर्डन हो जाता है विद आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, 99% यही होता है टाइम। तो जब रिजल्ट आता है ना, हम रोते क्यों हैं, क्योंकि हमको लगता है हमने उनके एक्सपेक्टेशन तोड़ दिए, उम्मीदें तोड़ दी उनकी, है ना। दी आपकी आवाज। नहीं, मैं बोल नहीं हाँ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। सो ये मतलब रोना इसी बात का, आधे आंसू इसी बात के होते हैं कि वे लेट देम डाउन। तो इससे कैसे हम निकले, बिकॉज पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ टू साइडलाइन द एक्सपेक्टेशंस एंड स्टडी विदाउट फीलिंग हैवी, हाउ टू डू दैट। सो फर्स्टली तो मैं उन पेरेंट्स को एड्रेस कर लूंगी इन केस अगर कोई सुन रहे हैं तो। इस एग्जाम के लिए बहुत एफर्ट लगता है, सबसे पहले तो बहुत हिम्मत खुद से लगती है टू इवन थिंक अबाउट ट्राइंग एंड अटेम्प्टिंग, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। उस जर्नी को झेल पाना भी जिसने ऑनेस्टली काम करा है उसके लिए आसान नहीं होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी तो आई द अदर डे, आई मीन 2-4 साल पहले की बात है, सो आई जस्ट गॉट कनेक्टेड टू वन वेरी ओल्ड कॉलेज टाइम फ्रेंड। अभी वो जेन्यू उस टाइम वो पीएचडी कर रही थी, मतलब शी कंटिन्यूड हर स्टडीज, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड देन पीएचडी फ्रॉम देन डीयू एंड जेन्यू। अच्छा। तो एक बार ऐसे ही वी वर जस्ट टॉकिंग एंड आई वाज लाइक, यार तुम इतने टाइम से मतलब पढ़ रही हो कंटिन्यूअसली, स्टडिंग ऐसे, मतलब पीएचडी इज लाइक बहुत भारी काम होता है मतलब मेरे नजर में। एंड शी वाज लाइक, अर्पिता तुम जो कर रही हो उससे तो आसान ही काम है बिकॉज यूपीएससी मेरे को लग रहा है ज्यादा मुश्किल है। आई एंजॉय पीएचडी मोर देन, मतलब आई कंसिडर इट सो टफ। And I remember during graduation days, she was also willing, and her father is also an already like office. अब तो शायद retire होंगे, I don't know, but has been into the service. So she was also an aspirant then. I mean, she used to tell that she was an aspirant. मतलब उसने शुरू नहीं करी थी journey. But then I don't know how she changed her path and everything, and she was like, मेरे को तो यूपीएससी से ज्यादा आसान लग रहा है ये पीएचडी का काम करना। ठीक है, जहाँ आपको पता है 3 से 5 साल लग जाते हैं थीसिस में, और ये सब इतना हेवी मतलब वर्क होता है, एंड देन आपने लाइफ में बीच में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे काम करा। सो क्या होता है कि हम मतलब इस एग्जाम का ना अलग अलग शुरू जब लोग करते हैं बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से करते हैं। अगेन एज आई सेड, सस्टेनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपका बच्चा सस्टेन कर रहा है ना उस चीज को, तो पहले तो वही अप्रिशिएट करने की चीजें हैं, क्योंकि रिजल्ट ना आपके हाथ में ना आपके बच्चे के हाथ में। एक्सपेक्टेशंस होनी भी चाहिए, अच्छी भी होती हैं, until and unless it is into a certain limit, मतलब within a certain limit I would say। उसके बियॉन्ड वो प्रेशर हो जाता है। तो वो जो थिन लाइन होती है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर, चाहे वो सेल्फ क्रिएटेड हो चाहे वो पेरेंट्स, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव सोसाइटी है वो, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो लोग नहीं आएंगे आपको सपोर्ट करने व्हेन यू विल हैव योर टफ टाइम्स। टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम अर्पिता आल्सो, वी बोथ हैव सीन दिस पर्सनली एंड वी नो दिस, इट डजंट हैपन दैट वे। तो उसको तो छोड़ ही देना है। पेरेंट्स और अपनी ही बात करते हैं सेल्फ में। तो चलो सेल्फ का तो क्या होता है कि ठीक है अपने आप को संभाल लेते हैं, समझा लेते हैं, हमें भी पता होता है कि हम जेन्युइन अगर एफर्ट्स कर रहे हैं और तब नहीं सिलेक्शन हो रहा, तो हमें पता होता है कि बुरा लगेगा, और हमें ये भी पता होता है अगर कोई अटेम्प्ट हमने एवे में दे दिया जस्ट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, तो हम चाहे दूसरे को कितना बोल भी लेना, अरे नहीं हुआ,
बट हमें पता होता है दैट हाँ वी आर नॉट गिवन आवर बेस्ट, और मे बी हम्म यू नो आई मीन देयर वाज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड हमारी हम्म क्या कमी थी। हम्म अगर सेल्फ डाउट पे सेल्फ उसमें अगर आए क्वेश्चनिंग में, अगर आपको पता है दैट यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू कुड हैव, देन फालतू में अपने ऊपर प्रेशर मत लो। मेरी एक फ्रेंड हमेशा मुझसे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये लाइन कहती थी, और ये बहुत हम्म जगह पढ़ा भी है, दैट नो अमाउंट ऑफ गिल्ट कैन चेंज योर पास्ट एंड नो अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन यू नो मेक योर फ्यूचर। हम्म तो एंड दिस इज वेरी अगेन वेरी मतलब कैसे बोलूं, मैं ना हर सिचुएशन के लिए अपने पास एक लाइन रखती हूँ, हम्म which keeps me grounded, हम्म which helps me moving, कि हम्म ठीक है अब जो अगर नहीं मैंने अच्छा करा और अगर गिल्ट है, उससे मेरा वो पास्ट नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, गिल्ट है, एक्सेप्ट करो, खत्म करो, फुल स्टॉप। हम्म और एंजाइटी से मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम्म तो अगर एंशियस भी रहना तो उतना ही रहो जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव पुश की तरह काम करे, एंड नॉट हाँ हैम्परिंग योर प्रिपरेशन। और हाँ रही बात पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन की, तो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज डू नॉट ओवरबर्डन योर चाइल्ड। आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई अंडरस्टैंड कि आपके अपने फीलिंग्स होंगे, इमोशंस होंगे, हर पेरेंट अपने बच्चे को अच्छा करता देखना चाहते हैं, और अगेन एज यू सेड उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बच्चे के जगह भी रह के सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाएगा कि जब बच्चा समाज से भी अलग है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेक्लूडेड, दोस्तों से भी प्रोबेबली बहुत कम दोस्तों के साथ होगा, फिर वो खुद में भी द पर्सन वुड स्टार्ट फीलिंग अ लॉट मेनी थिंग्स। और अगर वो फैमिली से भी बात नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स से भी बात नहीं बच्चे कर पा रहे हैं, द एस्पिरेंट्स, देन वो चीजें वो घुटने लगते हैं। तो हम्म एटलीस्ट ये भी होता है कि वो प्रेपरेशन छोड़ के बहुत ही दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं। You हाँ talk about galat sangati, you talk about any kind of wrong addiction, you हम्म talk about any such thing which might hamper them, which might even cost their life. उनकी लाइफ भी रिस्क में जा सकती है, ये एक सीरियस मैटर है। हम्म सबके साथ नहीं होता होगा, बट कुछ के भी अगर साथ होता है तो यू नो, एंड मेनी ऑफ द पीपल, और ये डेटा भी कहता है, अगेन आई एम नॉट टेलिंग दिस, कि हैव बीन सुसाइडल यू नो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। rather than the failure, they are actually conscious about the fear of failure. वो डर जो होता है कि फेल हो जाने पे क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा होता है। जब आप फेल हो जाते हो शायद वो ज्यादा आसान से हैंडल हो जाता है, rather than जब आप हर दिन घुटते और खुद में मरते रहते हो ना, विद दैट प्रेशर एंड फियर ऑफ फेलियर, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है डील करना, एंड दैट हैम्पर्स योर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ इन एवरी वे। ठीक है, नेगेटिवली। तो पेरेंट्स के लिए भी है, आप थोड़ा सा एक वो बैलेंस बना के रखें। बच्चों के लिए भी है जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्राई एंड टॉक टू योर पेरेंट्स इफ यू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देम। Try and make them aware about the examination process, no matter how educated they are, no matter what is their you know background, वो कैसे पैसे कमा रहे हैं, and if they understand about this exam or not। आप जनरल भाषा में, आम भाषा में, ऐसे नॉर्मल जैसे हम बातें कर रहे हैं, आप समझा सकते हो ना एग्जाम के बारे में उनको, कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, इतना टफ होता है, इतने बच्चे निकलते हैं। और उसको ना ऐसे मत करो दैट कि वो आपको ऐसे बेचारा बेचारी टाइप समझे, पिटी वाली चीज नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। Because most of the aspirants' parents will not be aware about the examination process. हाँ ठीक है, हाँ तो बताएगा कौन? अब वो हाँ क्या होता है, वो यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं, या कोई जान हाँ पहचान का निकल गया तो उनको लगेगा कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, हाँ और अगर अब जैसे 2023 का भी बात करें, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, बट देन पीपल वुड आल्सो फील कि अच्छा उससे क्या होता है, उतने हजार का, 14-15 जो भी जितने हजार का हुआ, उतना का तो हुआ ना। हाँ आपको समझाना पड़ेगा कि वो कैसे प्रोसेस था, जिनका हुआ हो सकता है लक से हो, इस बार तो लक का रोल था, लक का मेजर रोल था, हार्ड वर्क तो थी बट लक का भी रोल था। फिर मार्क्स एक साल बाद आता है, अब नहीं पता है हाँ बच्चों को कि उनसे कहाँ गलती हो गई, जीएस में हुई, सीसैट में हुई, आप कि कोचिंग एक नंबर से रह गए कि 2 नंबर से रह गए। एग्जैक्टली हाँ मार्जिन क्या था आपके छूट जाने का। तो ये सारी हम्म चीजें अगर आप नहीं बताओगे उनको, जिनको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन ऑल्सो अ चार्टेड, आपने पढ़ाई की उस चीज के, आपको नॉलेज है, आपका हाँ घर में भी आपके बैकग्राउंड रहा है। अब हम्म मान लो आप मेरे से उस बारे में बात कर रहे हो और मेरे को उस चीज का एबीसीडी भी नहीं पता है, हाउ विल आई मेक सेंस ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग? एग्जैक्टली हाँ एंड यू फील से कि अच्छा दीदी मैंने नहीं क्वालिफाई करा, सो आई मे बी आई अज्यूम कि तुमने नहीं पढ़ाई करी है ठीक से। हम्म, ठीक है, बट मेरे को अगर पता ही नहीं है कि वो कितना ग्रूसम होता है, वो कितना हाँ होता है, मतलब यू नो इट्स नॉट इजी टू क्लियर सी एन सी एस। अगर हम्म मुझे नॉलेज ही नहीं है अबाउट समथिंग, हाउ वुड आई आई मीन यू नो जस्टिफाई माई ओन पॉइंट्स? इट वुड जस्ट बी एन एजम्पशन। सो हम्म पेरेंट्स बहुत सी चीजें अज्यूम कर लेते हैं, बहुत सी चीजें कंपेयर इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया में अननेसेसरी टॉपर्स को हाईलाइट कर देते हैं, और
और किसी गलती से किसी रिलेटिव के और या नेबर के बच्चे का निकल गया तब तो आपकी खैर नहीं है. So the whole point is that make them aware. If they will understand, make them aware about the exam, the pattern, everything, and make them aware about your I would say, the way, the efforts that you are putting in. उसको भी बताओ उनको कि हाँ मैंने ये कोशिश करी है बट अब नहीं हुआ, then I did everything that I could have. तो आई थिंक वो जो गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप, उसको अगर आप ब्रिज करते हो अपने पेरेंट्स के साथ तो बहुत हद तक वो एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर कम हो सकता है. खत्म तब भी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेशन की तरह भी काम कर सकता है. यू हैव टू अगेन फाइंड दैट बैलेंस, जो आपने शुरू में भगवत गीता वाली बात करी थी. एक्सट्रीम पे कुछ नहीं ले जाना है. सो आई थिंक दैट माइट हेल्प. That was beautiful. मेरे इतने questions थे but सारे answers इसी एक question से निकल गए. So, oh God. डाइजेस्ट करना, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू गए हैं ना, सेम चीज, पेरेंट्स वर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस एंड एवरीथिंग. अब जाकर उनको पता चला है क्या होता है. तो स्टार्टिंग में काफी मुश्किल होता था, काफी मुश्किल. वो डाउटफुल आंखों से देखते थे. तो या आई गॉट माय आंसर्स. थैंक यू सो मच. बताना पड़ेगा. It's just, I'll just also say one line. It's also about owning up everything that you are doing. Your success and your failure. You have to own this up. आपको सर उठा के हेड ऑन उस चीज पे बात करनी पड़ेगी. एक बार मुश्किल आएगा, सेकंड बार नहीं आएगा. एग्जैक्टली. तो मतलब एक बार जब बता, इवन इफ यू आर लेट्स से फेलिंग इन कॉन्जिक्यूटिवली, फेलिंग इन प्रीलिम्स आल्सो, इट्स ओके. टॉक टू देम, से कि ठीक है मुझसे ये कमी रह जा रही है, मे बी आई डू नॉट हैव द एप्टीट्यूड ऑफ क्लियरिंग द the MCQ pattern examination, but it does not mean that you cannot be a good officer. So even if you see, these are two very very different things. अगर आपके अंदर वो aptitude नहीं है, does not mean that you are not a good human being or you are not worthy enough or you are not a good, you cannot be a good officer. ये सब नहीं है. तो वो पहले तो खुद समझो, ठीक है, एनालाइज करो, then own it up. मैं जैसे बहुत विश्वास करती हूँ इस चीज में, and trust me, this also helps you to सस्टेन दैट प्रेशर. अगर कोई बाहर वाला आपको इंफीरियर फील कराने की कोशिश करे तो आपके पास तो जवाब ऑलरेडी रेडी है. अगर आप अपने फेलियर को सर उठा के एक्सेप्ट करोगे ना, विच डज नॉट मीन घमंड में, विच मीन ह्यूमिलिटी के साथ आप ग्राउंडेड हो, बट आप मान रहे हो ठीक है नहीं हो पाया ये चीज, तो सामने वाला आपको छोटा नहीं फील करा सकता है. तो वो बहुत इजी हो जाता है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका दर्द, your pain, your suffering would be eliminated, but it would definitely reduce to a greater extent, I would say. I think it might be of use to somebody. Also, आपने जो समझाया उससे मुझे ना एक लाइन याद आ रही है कि you cannot judge the ability of a fish by the way वो climb कर पाए ट्री या नहीं. वो जो कोट हुआ करता था, I don't remember the exact quote, but मुझे इतना पता है कि you cannot classify or categorize people कि आप ये नहीं करोगे तो you are a dumb person, ये नहीं करोगे तो you are a failure. No, हर एक के अपने अपने skills होते हैं. कहाँ आप उसको better use कर सकते हो, that's the purpose. And वहीं पर मीन्स आते हैं एग्जाम्स. यूपीएससी का हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया. टेस्ट करो कि कहाँ आपकी इंटरेस्ट है और कहाँ आपको लगता है कि यहाँ मैं बेटर दे पाता हूँ, अपना अप टू द पोटेंशियल काम कर पाता हूँ. Which brings me to my ending question कि अभी तक जैसे आपने, बिकॉज आई वॉज एन एस्पिरेंट, तो मैं आपके सामने एज अ स्टूडेंट ही बैठी हुई हूँ यहाँ पर, एंड यू हैव सीन माई जर्नी पहले से लेकर अब तक, मतलब स्टार्टिंग से. टू द लिसनर्स, अर्पिता दी एंड मैं कनेक्टेड रहे हैं सिंस 2018 हम कनेक्टेड रहे हैं. वी हैव डन योगा टुगेदर एंड वी हैव डन सो मेनी थिंग्स, शेयर्ड सो मेनी थिंग्स एक दूसरे के साथ. सो शी नोज मी काफी क्लोजली एंड वी आर नेम पार्टनर्स, तो नाम भी हमारे सेम है. मेरे तो फोन में नंबर भी आज वैसे अभी भी वैसे सेव है. So and I have seen अर्पिता दी कि वो ऑन एंड ऑफ रही है व्हाट्सएप से भी, क्योंकि वो जो बोलती है ना कि मैं सोशली डिटैच, सोशल मीडिया से डिटैच रहती हूँ. आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं नाराज भी काफी रहती हूँ कि आप एक तो इतना दूर रहते हो, ऊपर से आप व्हाट्सएप पे भी नहीं होते हो कभी कभी. सो आई जस्ट वॉन्ट दी कि ऑन द एंडिंग नोट मेरे लिए कोई एडवाइस और मेरे थ्रू स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस. देखो एडवाइस तो मतलब अभी मैं भी शायद उसी जोन में, तो बहुत ज्यादा तो आई एम नॉट द मतलब राइट पर्सन भी,
बट थोड़ा बहुत जो मैं समझती हूँ चीजों को, उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, मेरी एक मेंटोर ने मुझे एक बार, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी व्हेन आई वाज हैविंग माय लोएस्ट फेज, आई वुड से, he said that Arpita, life is much about staying relevant. ठीक है? Okay. And again, I have carried this since that day till this date, and I am going to carry this forever with me. So to you and to everybody who is listening to this or maybe listening later, stay relevant in whatever you are doing. ठीक है? आप Okay. ऑफिसर बन के भी irrelevant हो सकते हो, समझो इस बात। After selection also, you have just got selected or cleared in examination. Does not guarantee that you are a good officer or you are an asset to the country or the society or the organization you're working for. और वो asset वाली जो चीज है वो आप without clearing भी कर सकते हो in any other organization that you're working for. So stay relevant in whatever you are doing. If you are doing preparation, have it in a way कि चलो यहाँ से I will extract the maximum this journey of preparation. ठीक है? And if you, let's say somebody who is out of this preparation cycle or willingly quitting it, ठीक है, for any kind of person, तो उनको भी आप जो भी further field, like अभी आप जैसे पढ़ा रहे हो and you are furthering, you're also exploring the other things, as you said, marketing and everything. So stay relevant in those fields. Same goes for me, so the same goes for you, the same goes for I think anybody, or वो, and this is irrespective of your age, irrespective of your एग्जाम बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इसका कोई लेना देना नहीं है। समाज में अगर आप कुछ यूटिलाइजेशन का काम कर पा रहे हो, आपके होने से कुछ अच्छा हो रहा है, देन यू मेक योर प्रेजेंस मेक सेंस। वरना बहुत सारे क्रिएचर्स हैं दुनिया में ऑलरेडी, तो देन यू आर जस्ट वन ऑफ द क्रिएचर्स। अपने आप को पूरी दुनिया मत समझो, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। सो एक्सेप्ट द फैक्ट, अगर इस चीज में हम्बल रहोगे तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम सब भी आएंगे, बट यू विल डील इट इजीली, चाहे वो प्रेपरेशन टाइम में हो, प्रेपरेशन के बाद हो, ड्यूरिंग द सर्विस हो, ड्यूरिंग एनी अदर काइंड ऑफ वर्क हो। तो अगर मुझे पार्टिंग नोट पे कुछ ऐसे कहना होगा तो स्टे रेलेवेंट इज द कीवर्ड दैट आई हैव केप्ट विथ मी। एंड अगर इसको कोई डीपली समझे ना, आई थिंक इट्स एक अपने आप में ज्ञान है बहुत बड़ा ये। तो आई थिंक या दैट इज समथिंग आई कैन, मतलब आई कैन टॉक लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट इट, बट सम अप करूँ तो this is what I would say. This is आप कहाँ से लेकर आते हो ये लाइंस? मतलब ये तो खैर मुझे भी उन्होंने, मैम ने थी, मतलब उन्होंने थी क्या है अभी भी, बट शी टोल्ड मी दिस, और ये भी बातचीत में आ गया था। बाकी चीजें एक्सपीरियंस से सीखी है। आई मीन यू नो हाउ अप्स एंड डाउन्स माय थिंग्स हैव बीन, और वही होता है कि लाइफ में जब आप ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम खराब चीजें और मतलब अल्टीमेट उसमें जब चले जाते हो तो फिर आपको लगता है अब तो जो आएगा आई विल मैनेज। तो मेरा वैसा ही कुछ है। तो ये ज्ञान जो इतना पूरा था ये यूपीएससी से कम और लाइफ से ज्यादा है, बट उसको अप्लाई यूपीएससी जर्नी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे अगर अपने प्रेपरेशन टाइम पे ये सारी चीजें समझ आती तो शायद मेरी जर्नी को थोड़ी एज एन एस्पिरेंट ज्यादा आसान होती। ठीक है, मेरे थ्रू अगर किसी और की जर्नी आसान हो जाती है गुड इनफ। आपने बोला ना स्टे रेलेवेंट, आप जहां पर भी हो अपना बेस्ट दे रहे हो। तो आपने अपने टाइम पर स्टार्टिंग में आपको ये ज्ञान नहीं था या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट देखो आपके थ्रू अब बच्चों को मिल रही है। तो अब जो स्टार्ट कर रहा है आप ये सोचो वो कितना ग्राउंडेड और बैलेंस्ड होगा, है ना? So I think it helps in the longer run. तो क्योंकि बहुत लोग सर्विस की प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो जो एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ बाहर से दिखती है वो अंदर से तो नहीं होती है ना। नहीं होती है, हाँ। तो मतलब वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। तो कुछ बेसिक वैल्यूज जब आप थ्रू आउट, अगेन एज आई सेड, इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस। यू विल नॉट लर्न इट ओवरनाइट, and it's not written in a book that you will just rote memorize it. It has to be practiced, it has to be acquired, it has to be internalized. So if you do this during the process, it helps you in the longer run till you are alive in whatever you are doing. तो आई थिंक वो हेल्प करती है चीजें, मतलब करनी चाहिए। मेरा भी अभी वैसा कोई एज नहीं है कि इस पे मैं बहुत बड़ी बातें कर सकूं, बट आई थिंक आई मीन इट्स वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। इट इज बाउंड टू हेल्प, व्हाई विल इट नॉट हेल्प? एग्जैक्टली। सो मतलब कुछ 2-3 ऐसी सॉलिड वैल्यूज लाइफ में रखो जिनको आप एज आर्म्स यूज कर सकते हो, कि जब लाइफ चैलेंजेस या पंचेस भेजती है तो आप शील्ड के तौर पे अपनी वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज ही आती हैं हेल्प करने के लिए एंड में, है ना? क्योंकि अगर आपके पास फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज है तो वो आपको, ऑब्वियसली लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं है, चाहे आप रतन टाटा सर को ले लो या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ले लो, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं और आई हैं और आते रहेंगे। दिस इज लाइफ। बुद्धा ने बोला है कि सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
एग्जैक्टली नॉट एस्केप, वो नहीं एस्केप कर पाए। तो द पॉइंट इज कि सफरिंग तो आएगी, इसको पहले तो आप, टू सम अप दिस पॉडकास्ट, सफरिंग इज देयर एंड वो आएंगे, तुमको नॉक डाउन करेंगे, बट वैल्यूज होना जरूरी है, स्टेइंग रेलेवेंट टू योर वर्क, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड स्टेइंग ग्राउंडेड एंड स्टेइंग हम्बल। ये कुछ चीजें हैं जो लाइफ को स्मूथ बना देंगी। ओके, सो कमिंग अप टू योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है जो आप अभी रिवाइव कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उस पर आप अकेडमिकली एंड मेंटली हेल्प करते हो बच्चों को, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार चेकआउट करके जरूर देखना। द पॉइंट इज कि अब मुझे ये पूछना है कि आप इन सभी वैल्यूज को अपनी लाइफ में आप कैसे, यूट्यूब के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू, कैसे आप इन वैल्यूज को आगे लेकर जाने वाले हो? व्हाट आर योर प्लान्स for the future, for the students and for your own self? So अभी even I am exploring on multiple avenues that I can look for professionally, और ठीक है, जैसे as I said teaching is a fallback option anyways, चाहे वो कोचिंग की टीचिंग हो चाहे वो स्कूल टीचिंग हो, वो तो चलेगा क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, और as I said जीने के लिए पैसा चाहिए तो कमाना पड़ता है, अच्छे जितने अच्छे काम से कमाओ वो ज्यादा इजी होता है। हाँ। तो हाँ, वो तो एक है साइड की चीज है। रही बात यूट्यूब चैनल और उसके थ्रू जो मैं कर पाऊँ और इन वैल्यूज का एप्लीकेशन में कैसे कर रही हूँ, तो अभी तो आई थिंक इन दिस वर्ल्ड यूट्यूब नाउ हैज बिकम अ ब्लेसिंग फॉर मे बी एवरीबडी, आई वुड से कि आपको किसी से परमिशन लेने की नहीं जरूरत है, यू हैव दैट ऑटोनॉमी एंड डिस्क्रिशन, इट्स योर चैनल, स्टार्ट अ चैनल, स्पीक अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू। नाउ आई, पहले जैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा यूपीएससी ओरिएंटेड चीजें जब तक मैं एक्टिव थी करवाती थी, बट अभी रिसेंटली कुछ दिनों से जो मैंने रिवाइव करना शुरू करा है, I've been talking about UPSC for the beginners and हर चीजें, लेकिन उसमें मैंने ये सारे लाइफ के एंगल घुसाए हैं हर जगह पर, क्योंकि उसके बिना मुझे ये बहुत इनकम्प्लीट लगता है। एज आई सेड यूपीएससी प्रेपरेशन कैन नॉट बी सिक्लूडेड फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा। तो अब जैसे मैंने अब जो और प्लान्स है, अभी तो मैंने एक बिगनर्स गाइड करके वो चीजें रखी थी कि वही प्रिपरेशन कैसे करो, कहाँ से करो, कब रोको, वो भी बहुत जरूरी है, व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम दिस थिंग। तो वो सब चीजें पे मैंने बात करी है, बट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज कि मैं लोगों से भी सजेशंस लेती हूँ। मैंने टेलीग्राम पे लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं दैट व्हाट वीडियोस यू वुड वांट मी टू मेक ऑन, बट मेरे जो खुद के एक्सपीरियंसेस और मेरे पास बहुत सी चीजें शेयर करने को जो मैंने आज तक अपने अंदर रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी एक वो था, अच्छा कभी अगर सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब तब तो तब नहीं आता है, अब है जो है, मतलब दिस इज द टाइम दैट आई हैव एंड आई एम गोइंग टू यूज इट एंड आई विल यूज द यूट्यूब प्लेटफॉर्म जस्ट टू शेयर एवरीथिंग दैट आई हैव विद द पीपल। वो 10 सुन रहे होंगे तो किसी एक को तो जरूर क्लिक कर जाएगा या रेजोनेट कर जाएगा या हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन, अभी हर दिन मैं सोचती हूँ, वो हो नहीं पा रहा, बट आई विल डू इट फॉर द अनमैरिड फीमेल्स जिनको कहीं ना कहीं वो एक मैरिज का लोड या प्रेशर है, चाहे वो सेल्फ क्रिएटेड हो या वो एक्सटर्नल हो, एंड हाउ डू यू डील विथ इट, बिकॉज आई एम डीलिंग विथ इट एंड देयर आर मेनी फीमेल्स डीलिंग विथ इट। तो उस पे मेरे जो भी ओपिनियंस और बहुत सारी चीजें मेरे पास शेयर करने के लिए, तो उस तरह की लाइफ रिलेटेड चीजें जिसके लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, और सामने वाले का डिस्क्रिप्शन है, आपको सुनना है आप सुनो, अगर आपको नहीं सुना मत सुनो, लेकिन मुझे बताना है। सो इट्स ऑफ दैट सॉर्ट। अब मैं ऑफिसर बनने का वेट नहीं कर सकती या किसी बड़े पोजीशन पे पहुंचने का वेट नहीं कर सकती हूँ, तो शेयर व्हाट आई हैव टू। तो वो उस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि अगर लोगों की कुछ चीजें हैं जिसमें मेरा छोटा सा भी रोल हो पाए, तो एज आई सेड आपको एंड गोल पता होना चाहिए। मेरा एंड गोल यही था। यूट्यूब अब एक मीन्स बन गया है, मे बी आगे कुछ और मीन्स बन जाए, अभी मुझे नहीं पता। आई एम ऑल्सो इन दी मतलब एक्सप्लोरिंग थिंग। तो पर्सनली प्रोफेशनल फ्रंट पे वही है, आई वुड बी गोइंग विथ एनी, अभी आई एम स्टिल टू डिसाइड कौन सी इंडस्ट्री में आई वुड बी कंटिन्यूइंग विथ, बट साइड बाय साइड पर्सनली नाउ आई विल कंटिन्यू दिस। मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने को, सो यस। और हम लर्न करने के लिए एकदम बैठे हुए हैं तैयार। थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप किसी को थोड़ा भी हेल्प हो जाए ना, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि लोग रेजोनेट करते हैं तो वो भी ओपन अप होते हैं, दे आल्सो से कि यार अब आपने बोला ना तो हमें भी हिम्मत आ रही है। ऐसा अभी मैं कुछ दिनों की बात बता रही हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग बैक ऑन सोशल मीडिया एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, एंड जिससे भी बात करो 2 से 3 घंटे, हमारी भी जो उस दिन कॉल हुई थी इट वाज 2 आवर्स ऑलमोस्ट, तो 2 से 3 घंटे की बात हो ही जाती है, क्योंकि मैं 2 साल बाद बात कर रही हूँ सबसे। तो एंड व्हेन आई ओपनड अप अबाउट व्हाट आई हैड बीन थ्रू, दे वुड लाइक अब आप कह रहे हो तो वी आल्सो हैव गॉट मेनी थिंग्स टू शेयर। तो सबके पास है कुछ ना कुछ, इट्स जस्ट लोग कर नहीं पाते हैं। वो जो इनिशिएशन है ना, वो पुश जो है, वो मैं करना चाहती हूँ, at least for the people who know me or who are watching me or who will watch me in some। अभी मेरा रीच उतना नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके।
जितनों का भी है, मतलब आई वुड स्टार्ट दैट। तो अभी तो यही प्लान है, लेट्स सी आगे, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट अभी आई एम क्लियर ऑन टू वेरी थिंग्स। एक फाइनेंशियल एक वो चीज है अपनी शुरू करनी है, स्टेबिलिटी जैसे भी हो, बट सेकेंडली लाइफ की ये चीजों पे मुझे बात करना है। यूपीएससी पढ़ाने तो मैं भी पढ़ाऊंगी, बट और भी लोग हैं पढ़ाने के लिए, तो वो सिलेबस बहुत लोग बता देंगे, मुझे वो लाइफ का सिलेबस समझाना है अभी बहुत कुछ। अभी मैंने सीखा है, तो बस यही है। वाओ, लाइफ का सिलेबस, ये बात बिल्कुल सच है कि यूट्यूब चैनल आप देखोगे हजारों हैं। यूपीएससी में भी, हिस्ट्री की भी मैंने देखे हैं 100 चैनल्स हैं, पॉलिटी के और 200-500 चैनल्स है, शॉर्ट्स है, सब कुछ है, बट लाइफ और यूपीएससी की प्रिपरेशन को हैंडल कैसे करना है वो कोई नहीं बताता। आप सर्च करके देखो, कोई नहीं इस पर बात कर रहा। अभी रिसेंटली मैंने देखा डॉक्टर शिवन चौधरी हैं, जिन्होंने ही हिमसेल्फ क्लियर्ड, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग, And the एंड content he gives is मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं वो खुलकर, एंड ही हैज नॉट शाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट कि वो भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, दिस मेंटल हेल्थ प्रोसेस। एंड ओ माय गॉड, उनकी वीडियोस एंड वो कितनी क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी विद शिवन। 25 साल में उसके पास इतनी क्लैरिटी है, ही इज and सो even I, यंग। yeah, he's so young, and also, you know, as I said, he is also owning up those things कि हाँ मुझसे गलती हुई, मेरे रिलेशनशिप हाँ में मुझसे गलती हुई थी, हाँ, मेरे प्रिपरेशन में मुझसे गलती हुई थी, मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए, मेरे घर में ये चीजें हुई थी, एंड देन स्टिल ही इज देयर विद द फ्लाइंग कलर्स, एंड ही स्टिल हेल्पिंग, जहाँ उनके बैच के बाकी लोग सिलेक्शन के बाद मजे भी कर रहे हैं, एंड ही इज स्टिल टीचिंग, स्टिल हैविंग हिज कोर्स। एग्जैक्टली। मतलब वो जो 3 मंथ्स का पीरियड होता है ना, तो शॉपिंग करो, ये करो, वो करो, ये सब उसमें जाता है एक्साइटमेंट में, बट वो 3 मंथ्स मतलब उन्होंने अनाउंस किया एंड इज टेकिंग बैचेस एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो आई विश कि सम डे मैं उनको भी लेकर आऊँ इस पॉडकास्ट पर। Same here. Even I would, yeah, feel like talking to him once. तो But मतलब वो हमसे छोटे हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कोई शर्म नहीं है बताने में। नहीं, हाँ बट बिल्कुल। द पॉइंट इज कि ओ माय गॉड, लाइफ, तुम्हारी एज नहीं देखेगी लाइफ तुम्हें समझाने के लिए। ये बात मैंने सीखी है। एट 21 भी लाइफ तुम्हें ऐसा झटका देती है कि समझ आ जाती है, एंड दीज आर नॉट समथिंग कि अरे ये सफरिंग है, इसको ऐसे लेकर बैठना है, नहीं। मतलब सीखना है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू एंजाइटी अटैक्स, आई हैव बीन थ्रू पैनिक अटैक्स, और मैं इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। आई एम वेरी क्लियरली एंड ओपनली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि आई हैव बीन थ्रू लास्ट 8 years मेरी लाइफ के ऐसे थे कि आई स्टार्टेड लूजिंग माई हेयर, मेरी पर्सनल हेल्थ पूरी सब बिगड़ गई थी। एंड नाउ धीरे धीरे 8 साल लगे मुझे समझने में कि कैसे डील करना है इससे। सो यू आर हेल्पिंग पीपल टू ओपन अप, यू हेल्प मी टू ओपन अप अबाउट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपके साथ शेयर किया था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू व्हेन यू ओपनड अप टू मी। जब आपने ओपन अप, आपने बताया था, तब मैंने आपको बताया कि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स एंड डीलिंग विद ऑल इमोशनल बैटल, फाइनेंशियल, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। Everything, yes. तो यू आर, मतलब आपका सर्विस एटीट्यूड है, एंड ये सबको अपनाना चाहिए। यू आर हेल्पिंग पीपल टू ओपन अप एंड टू स्टेप आउट ऑफ दैट फियर वाला जोन। एंजाइटी आना, घबराओ मत। मुझे पता है कि इतना टफ होता है, वो पीरियड टफ होता है उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना, बट देखो 2 लोग हैं तुम्हारे सामने जो उस थॉट प्रोसेस में रहे भी हैं, अभी भी हैं टू सम एक्सटेंट, बट वी आर बिल्कुल। ट्राइंग कि हम वो रेखा जो बनाई हुई है उससे थोड़ा स्टेप आउट बाहर करें। हाउ? बाय हेल्पिंग, बाय टॉकिंग अबाउट इट, सबसे पहली बात तो I think it is the ultimate solution, I would say. मतलब हाँ, 99% लोगों की परेशानी तो इसी से दूर हो जाएगी। बात 1% करने से। जिनका बहुत सीवियर होगा will have to take हाँ, help. take और help. आपने जैसे बताया 8 years आपका रहा है, almost 7+ years मेरा भी रहा है, मतलब हम्म, you know things have been, and of course you have been a witness to it. तो वो चीजें of course easy नहीं होती है, but now even I have decided it has to be talked about, and talked about bravely. कोई हाँ, shame नहीं है, ठीक है, सबके साथ होता है, तो ठीक है, इस पे बात करो, और बात करना बहुत बड़ा सोल्यूशन है, सुना जाना बहुत बड़ा सोल्यूशन है। खैर इस में मतलब मे बी वी टॉक अबाउट इट सम डे एल्स, बिकॉज वो एक अलग पूरा टॉपिक हो मतलब जाएगा। वो कर सकते हैं, हाँ। बट लास्ट ईयर जब मेरा इतना कुछ था एकदम से लोएस्ट, चल तो बहुत टाइम से रहा था, बट एक होता है ना वो सैचुरेशन, दैट आई रीच लास्ट ईयर एग्जैक्टली इसी टाइम, मई जून के टाइम पर। And when I somehow got connected to my mentor, and she just did one thing, she just kept talking to me. आज भी जब मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ तो वो वही बोलती हैं कि अर्पिता, you helped yourself, I just talked to you, and I say that ma'am, I just needed to be heard, and you heard me without judgment,
without any kind of manipulation, without any other kind of thing, and I could open up to you. And now when I am doing this for others, and आज भी मेरी उनसे बात हुई, and she said the same thing, कि on the very first day of our conversation, which was somewhere around 10th or 12th of May last year, she had said me the same thing, कि आज मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कल देखना आएगा वो दिन जब तुम ये दूसरों के साथ करोगी. And I don't know how, it was not planned, it just happened. Exactly वही मई जून के महीने में. And ठीक we है, are आप talking about and it. we are also talking, yeah, and I spoke to many people for past like 3 weeks, and they have started opening up. And we are doing it publicly. चलो मेरे वाले calls तो personal थे, but we are doing it publicly, and we do not mind talking about it. I mean, and it is for sure going to help people. So this has to be done. You are doing a great job, and I think we need to appreciate. I mean, I'm sure like you have started the podcast, so you will have more and more people into this. मेरा तो अभी थोड़ा मैं personal level पे कर रही हूँ. I'm not yet opened up much. But yes, this has to be done. I think ये primary होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है. UPSC भी हो जाएगा, बाकी सब भी हो जाएगा, पर कोई जिंदा तो बचे. पहले हाँ लाइफ बचा लेते हैं, मतलब फिर एग्जाम तो निकाल ही लेंगे, मतलब निकल हाँ जाएगा. exactly. लाइफ बचाना आई थिंक इज और लाइफ सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बचा सकते, हम नॉन मेडिकल्स भी बचा सकते हैं. तो अपना अपना रोल कर लेते हैं, जो स्किल हमारे पास है. तो being a good listener, I think one of the important skills. Being empathetic and compassionate is very important. और थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें समझ के हम बहुत इजी काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक yeah, let's continue this journey, like करना ही है ये, क्योंकि वी हैव टू सेव लाइव्स. मतलब मेरा तो अब यही ऑलमोस्ट एजेंडा बन चुका है कि भाई जितने जान बचा सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थ्रू एनी मीडियम, थ्रू एनी, जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग मच अबाउट, विदाउट अ सेकंड थॉट. अच्छी चीजों के लिए सोचना नहीं चाहिए ज्यादा. हाँ दैट इज अमेजिंग. आई फील सो लाइट. आपको मैं बता नहीं सकती, सुबह से आई वाज फीलिंग थोड़ा सा हैवी, एंड नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू आई फील एज इफ मतलब कुछ जैसे बहुत बड़ा लोड था मेरे कंधों पर, वो उतर गया है अब. तो आई फील वेरी लाइट अभी, बहुत ज्यादा. तो probably I'm going to get a very beautiful sound sleep आज रात को. So that's so relieving to hear and to know about it. But yeah, I mean, अच्छी बात है ना कि see again, what helped was talking. You talked also your heart out. It's not just me. You have not just heard me. You have also talked about it. So I think that would help. And doing it publicly on a channel would help you more, I think. क्योंकि हमको अपने शेल से निकलना पड़ेगा अगर हम जेन्युइनली लार्जर गुड के लिए कुछ सोचते हैं. तो नहीं तो फिर हम दोनों तो फोन पे वैसे भी बात कर रहे थे, आगे भी कर लेते. हाँ I think exactly. so it has to be done. So Thank you guys for doing this. and thank you for accepting to अरे come up अब on तो this podcast. Thank you so much. हाँ. So basically this was Arpita Prakash ma'am. She is a wonderful friend, an amazing educator, and also you can see कि mental health की जब बात आती है तो she is the person to go to. Just go to her channel. एक बार आप बस जाकर उनके बात करने का तरीका, वीडियोस बनाने का तरीका, आपसे कनेक्ट करने का तरीका आप देखोगे, यू विल नॉट फील कि ये कोई स्ट्रेंजर है या मनी मेकिंग मशीन है. नहीं. इन टुडेज टाइम आई नो इट्स टफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल कि कौन हमसे क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर है. आई नो, बट अर्पिता प्रकाश मैम के ऊपर तो आई कैन पुट माई बेट्स ऑन हर कि शी इज द पर्सन जो आपके साथ ना एज फैमिली कनेक्ट करते हैं. वो ऐसी नहीं है कि मुझे इससे क्या मिल रहा है. शी इज लाइक मैं क्या दे सकती हूँ, एंड दिस इज द एटीट्यूड दैट ईच वन ऑफ अस शुड हैव, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और नॉट, और एनी अदर एग्जाम. सो थैंक यू अर्पिता प्रकाश मैम. मैं तो दीदी बोलती हूँ, बट फॉर द स्टूडेंट्स शी इज मैम. Thank you so much for being on my channel. I hope to continue doing this with you some other time. हम फिर से mental health के ऊपर ही बात करेंगे. And I also am pestering Arpita ma'am कि आप यहाँ पर पढ़ाने आ रहे हो, मुझे नहीं पता, on this channel. You have to take up one subject and I want you to teach geography. तो आप सोचना इस बारे में, because students they mail me. जैसे ही मैंने अनाउंस किया था ना इंस्टाग्राम पे कि अर्पिता प्रकाश मैम इज कमिंग, एक हफ्ते पहले किया था, एंड आई विल शेयर विद यू द स्क्रीनशॉट्स कि वो बोल रहे हैं कि हमें ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए मैम को बोलो. प्लीज कंसिडर आवर रिक्वेस्ट. I will surely. मतलब मैं अभी कोई कमिट इसलिए नहीं कर सकती because as I said, a lot many things have to be done parallelly. But I would
seriously have that at the back of my mind that if at all it permits, yes. But हाँ, अभी के लिए वही होता है, मैं ना वर्ड्स की थोड़ी वो हो जाता है मैं तो मेरे साथ कि मैं कमिट करके पीछे हटना नहीं चाहती हूँ. हाँ. So I'll commit you the day I feel that yes I am going to, मतलब it's going to be possible for me. But आपने इतना सोचा and you had, मतलब मुझे नहीं पता था that you had put and all of that. But yeah, thank you so much for that. मैं I will figure out some ways out. थोड़ा मैं और अपने लिए भी stability ढूंढ लूँ. हाँ. Until then, yeah, we can continue as if we are doing. But ठीक है, if that works out, no problem. तो थैंक यू सो मच अर्पिता प्रकाश मैम. होपफुली बच्चों को काफी लाइट फील हुआ होगा जैसे मुझे फील हुआ है. एंड होपफुली अगर से 100 लोग भी सुन रहे हैं ना तो किसी एक की लाइफ चेंज हो या बेटर हो, वो गोल है. एक की भी हो जाए ना तो वी हैव डन समथिंग गुड टुडे. So on this note, I am wrapping up the podcast. Hope to come back soon with Arpita ma'am with yet another topic on mental health and emotional health, emotional intelligence, जो कि ethics का भी part है. क्यों होना जरूरी है इस preparation में, और UPSC भी यही demand करता है aspirants से. So on this note, we are wrapping up this session. Thank you so much, Arpita Prakash ma'am. Thank you so much for coming on this channel. For calling me. Thank And it was lovely interacting with you. Same here. Same here. I wish you all the very best for this particular endeavor of podcast. Keep doing more of it with more people, and now I will also be a viewer. And I will also keep checking क्योंकि सबसे सीखते हैं यार हम थोड़ा थोड़ा. So thank you again. Thank you. Hope the learners had some good time with us. Chalo. So yeah. We are ending up this. Thank you so much.